Assalamu alaikum. Good morning from London, and I believe good afternoon in Pakistan. I am so delighted to be chairing this session because it is a really important topic. Ethics and governance is the foundation of research integrity and research good practice. So I think I am really pleased that Mr. Mirbaksh and Ms. Muqaddas has taken the initiative to start off these sessions, and I'm sure that they will be delivering more sessions as well as we go along. So, mashallah, a great initiative, and let's get started. And I just want to reiterate how important this topic is. So people, please stay very engaged. And I think we'll have opportunity for activities as well as for questions and answers later on. Okay, before I hand over to the facilitators, I just want to give you some guiding principles of good research practice. And these are also the key elements that we like to promote within our organizations, Pakistan Institute of Living and Learning, and also Manchester Global Foundation. I, wearing my Manchester Global Foundation hat, I'm really pleased to be collaborating on this. So just starting with one of the elements being respect for the dignity, rights, safety, and well-being, not just for participants, but also for researchers. So it's really, if internally we give this respect to our fellow researchers and our fellow team, then consequently that culture and that ethos passes on externally as well. So it's really important to show that respect and trust to your fellow team members as well. Valuing diversity in society. So as we all know that we don't just have cultural diversity, religious diversity, but also gender, sexual, etc. So valuing it because each diverse person with their needs also brings across some strengths as well, which is valuable to the society. Personal and scientific integrity. So that integrity is very important so that we are able and the general public is able to trust us and we are deemed to be credible. Leadership, honesty, accountability, openness, and again, supportive management so that the team flourishes as well. So these are the things I just wanted to put across to set the scene. They seem very basic, but they're really hard to achieve, and you need to continuously work on that. Now I'm going to hand over to Amir and Muqaddas to deliver the workshop. So who's going first? Amir, is that you? Yeah, thank you very much, Rakshi Bhaji, for joining us and guiding us across this workshop, and I hope you will guide throughout. So before we begin with the formal slides, I just wanted to highlight this pinpoint I've taken from Declaration of Helsinki. मैं आगे भी बात करूंगा थोड़ी डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी के बारे में कि व्हाट दे एग्जैक्टली स्टेटेड और ये कब शुरू हुआ, लेकिन ये पिन पॉइंट अगर हम ये एक छोटी सी लाइन है लेकिन इट हैज मैसेज कि वेन एवर यू आर इंगेज विथ रिसर्च और इवन इन मेडिकल प्रैक्टिस, ज़्यादातर हम रिसर्च की ही बात करेंगे आज, तो हम एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स जहाँ काम कर रहे हैं वो दे शुड कंसीडर पेशेंट एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर पेशेंट हेल्थ एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ इधर इन रिसर्च और इन मेडिकल प्रैक्टिसेस। तो ये एक पिन पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं इसको, अगर हम वैसे देख लें, जनरली देख लें, तो आज के हमारे सेशन का
अगर हम कंक्लूड करें तो दिस लाइन विल कंक्लूड ओवरऑल आवर सेशन लेटर ऑन, और हमारी सारी प्रेजेंटेशन इस पे फोकस करेगी कि पेशेंट की हेल्थ जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। जब डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी की बात करें अगर, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो रिसर्च में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जो नहीं भी कर रहे, तो थोड़ा सा उनके लिए बैकग्राउंड में बता दूं कि बिफोर 1964-65 रिसर्च में कोई एथिकल कोई स्टैंडर्ड्स नहीं थे। मतलब कुछ लोग करते थे, जैसे आई वाज रीडिंग आउट व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग माय सेल्फ, तो जब मैंने देखा कि कुछ कंट्रीज में इवन फिर भी बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी कुछ कंट्रीज में फिर भी उनकी अपनी नेशनल गाइडलाइंस थी जो वो फॉलो करते थे, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज के पास नहीं थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो मोस्ट कंट्रीज में ये होता था कि जो रिसर्च है ये कंसीडर किया जाता था कि वो सिर्फ उन लोगों पर की जाती थी, जैसे फॉर एग्जांपल मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स या जो प्रिजन्स में जो कैदी होते हैं उन पे की जाती थी, एंड विदाउट गिविंग टेकिंग एनी कंसेंट या उनके कोई इंफॉर्मेशन के बगैर जो भी रिसर्च की जाती थी वो उनके। जब डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी आया तो उसके बाद जो है वो चीजें चेंज होना शुरू हुई अक्रॉस द ग्लोब, और उन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दे। अच्छा, मैं इधर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो मैंने सिर्फ फ्यू पॉइंट्स बताए हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अदरवाइज अगर इसको आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी इसकी ये इनकी डिक्लेरेशन है, और उसमें और बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं, और इसकी बहुत सारी रिविजन्स भी हुई हैं, होती रही हैं अक्रॉस। आई थिंक लास्ट रिवीजन व्हिच आई वाज लुकिंग एट, इट्स अबाउट 4th और 5th रिवीजन उनकी आ चुकी हैं, जिसमें ये डिफरेंट टाइम्स पे वक्त के साथ जो है वो उसको अडेप्ट करते आए हैं। अगर कुछ पॉइंट्स पहले नहीं थे तो वो अब उसमें साथ साथ ऐड करते आए हैं। Amir, would you mind if I just say something before you go on to these Please. principles? Please. It's really important to and tell people that the different studies that you have cited in your previous slide, they were carrying in the name of research, there were really unethical practices that were going on. So if you take the example of Tuskegee trial, at that time, penicillin was there, but they were not treating Black Americans or prisoners with for syphilis. So, so the medication was there, the treatment was there, but they were intentionally not doing it. So these practice, same with the Guatemala study as well. So it wasn't just that there weren't any laws, they were intentionally, as you said, marginalized communities say, या जो racial वो थे disparities, उनको वो intentionally research को वो कर रहे थे, और इसी वजह से there's such mistrust in research and researchers, and you find in COVID-19 as well, people are a bit apprehensive about treatment and about vaccinations. So I just wanted to say, that how important it is that we follow those principles. Thank you. Thank you. Very helpful. When we talk about research, when we talk about ethics, and when we talk about governance, we will go one by one on each of the points. But before we go to the basic principles of Helsinki or ethics, I want to ask from the participants if they want to share anything which they know about ethical practices, or even about research, or if they have heard anything about ethical practices in research. So I just wanted to know that what the existing knowledge we have with the participants, and then we will go ahead. So anyone who want to volunteer about what they know about ethical practices in research, or anything they want to share. So just spending 2 minutes on it. To ensure participant safety, proper guidelines के through काम करना, इस तरह का risk harm उनको ना पहुंचाना, confidentiality को maintain करना, risk को identify करना.
जो Okay. ऑलरेडी रूल्स हैं उनको फॉलो करना, लाइक एथिक्स अप्रूवल वगैरह जो आपको फॉलो करने होते हैं, उन सबको फॉलो करना। Thank you. Anyone else? प्रोजेक्ट के बारे में उनको ब्रीफ करना, उनको बेशक उसमें जो भी ड्रॉबैक्स हैं आपके प्रोजेक्ट में, ये पार्टिसिपेंट का राइट है कि आप उनको बता दें कि वो उनको चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जो मिल रहा है उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं, ये उनका राइट है, उनको बताया जाए। Okay. Anyone और else? बताओ। नहीं, आप ना बताएं, कोई और बताए अभी। Okay. Thank you, Sairish. Yeah, exactly the same. कि जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन दे हैव अ नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स। में सिर्फ शॉर्ट में हमने कुछ यहाँ पर बताए हैं कि जैसे नंबर 1 पे आ रहा है कि फिजिशियंस ड्यूटी इन रिसर्च इज टू प्रोटेक्ट द लाइफ, हेल्थ, प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। सो अच्छा, फिजिशियंस से मतलब कि इट्स नॉट अबाउट द ओनली who are engaging with the patients for their treatment, but it's all of the investigators or staff who are engaged with the research. हमारी जो रिसर्च असिस्टेंट हैं, हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, को इन्वेस्टिगेटर्स हैं, सो इट्स आवर ड्यूटी कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो पार्टिसिपेंट्स की लाइफ, उनकी हेल्थ, उनकी प्राइवेसी, उनकी डिग्निटी, उन सब चीज़ों को हम कंसीडर कर रहे हैं। जब हम रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम रिसर्च स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसर्च प्रोटोकॉल जो आपने बनाया है वो एक इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी से रिव्यूड है और अप्रूव्ड है। इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी से मतलब ये है कि when you are submitting your, so there are certain approval bodies of in different countries. For example, अगर मैं वैसे बताऊं तो हमारे पास पाकिस्तान में नेशनल बायोएथिक्स कमेटी है जो रिसर्च प्रोटोकॉल्स रिव्यू करती है अक्रॉस द कंट्री, जहाँ भी रिसर्च हो रही होती है। तो नाउ इट्स मैंडेटरी फॉर रिसर्चर्स टू टेक अप्रूवल फ्रॉम नेशनल बायोएथिक्स कमेटी। अब नेशनल बायोएथिक्स कमेटी इज इंडिपेंडेंट। व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट? बिकॉज हमारा डायरेक्टली उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। कभी ये भी होता है कि जैसे कुछ रिसर्चर्स जो है वो डायरेक्टली अगर कहीं पे कोई उनकी जान पहचान है या कुछ और वहां से अप्रूव करा लिया, तो दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपको एक इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी से अपना रिसर्च प्रोटोकॉल अप्रूव कराना होता है, एंड दे इंश्योर कि आपका जो रिसर्च प्रोटोकॉल है वो पार्टिसिपेंट की हेल्थ, सेफ्टी, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उनका कंसेंट, हर चीज उसमें शामिल है। तो दे बेसिकली इंश्योर एंड के जो आपका रिसर्च प्रोटोकॉल है वो एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका रिसर्च प्रोटोकॉल, अदरवाइज अगर आपने एथिक्स नहीं लिया, even you can't publish your research once you have completed your study. So when you will submit your manuscript, reviewers, or if you have not given the ethical approval details, reviewers will even editors will ask you to give details of the ethical approval of the study even with reference numbers. तो ये बहुत जरूरी है कि आपका रिसर्च प्रोटोकॉल एक इंडिपेंडेंट कमेटी से अप्रूव्ड है। अच्छा, रिसर्च प्रोटोकॉल जो पॉइंट 3 है, रिसर्च प्रोटोकॉल शुड बी कंडक्टेड बाय मेडिकली साइंटिफिकली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। क्योंकि आपका जो एरिया है जहां आप रिसर्च कर रहे हो, इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो लोग उस पर्टिकुलर एरिया में क्वालिफाइड हैं। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरी जो बाकी रिसर्चर्स हैं वो उनको ज्वाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, या टेक एग्जांपल कि अगर हम कार्डिक रिहेबिलिटेशन पे या कार्डिक के किसी कोई रिसर्च क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को देख रहे हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी हो और उसमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी हो। तो इस पॉइंट को बताने का मकसद है कि जरूरी है कि जिस एरिया में आपकी रिसर्च हो रही है उस एरिया से रिलेटेड उनकी एक्सपर्टीज हैं और वो लोग उसमें शामिल हैं जो क्वालिफाइड हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। वो मेंटल हेल्थ है, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं, या
कोई और एरिया है जिसमें वो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि वो मेडिकली और साइंटिफिकली जो है वो क्वालिफाइड है। इसके अलावा जो है वो पार्टिसिपेंट्स, ये आगे हम पढ़ेंगे कि उनका इन्फॉर्म उनके लिए जो है वो वॉलंटियर कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, मतलब रिसर्च में वॉलंटियर कर रहे हैं। दे आर नॉट फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च, और उनको इन्फॉर्म रखना, उनका कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। विदाउट दिस यू कांट गो इवन विद योर रिक्रूटिंग फर्स्ट पार्टिसिपेंट इन रिसर्च। अच्छा, इसके अलावा जो बहुत जरूरी है वो ये भी है कि आप जब जिस टॉपिक पे, जिस चीज पे आप रिसर्च कर रहे हैं, यू हैव, मतलब आपने इतना उसका रिसर्च लिटरेचर आप रिव्यू कर चुके हैं, इतना आपने उसका लिटरेचर रिव्यू कर लिया है कि यू नो कि जो इस रिसर्च के बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा होंगे कंपेयर टू उसके जो नुकसान हैं उससे। क्योंकि ऐसा नहीं हो, मतलब आप जो भी रिसर्च करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली देयर इज अ क्राइटेरिया कि यू गो एंड डू अ लिटरेचर रिव्यू और फिर आप उसमें से गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं, बट यू गो विद द लिटरेचर रिव्यू। तो आप उसमें देखते हैं कि अच्छा, अगर कोई रिसर्च हुई है कि उसमें 50 पार्टिसिपेंट का सैंपल था, लेकिन उसमें से 20 पार्टिसिपेंट या 30 पार्टिसिपेंट की डेथ हो गई एंड दे प्रीमेच्योरली एंडेड देयर स्टडी, देन यू डोंट नीड टू रिपीट इट। आपको पता है कि इसका हार्म बहुत ज्यादा है ऑलरेडी, तो आपको ये देखना चाहता है कि कितना लाइवलीहुड है ऑफ बेनिफिट्स टू पार्टिसिपेंट्स, और रिजल्ट्स कितने हेल्पफुल होंगे टू इन्फॉर्म उस पॉपुलेशन की के लिए। एंड अगेन, the privacy and respect of your participants, the information you collect, the confidentiality of the participants, जिनको आप शामिल कर रहे हैं अपनी स्टडी में, वो बहुत जरूरी है थ्रू आउट द रिसर्च के आप वो मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, अब जीसीपी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के आपकी रिसर्च जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, वो आप उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके रिसर्च। और अगेन वही पॉइंट्स हैं कि आप आपकी अपनी आपके पेशेंट्स की जो है वो पेशेंट्स की सेफ्टी, उनकी डिग्निटी मेंटेन हो रही है, दे आर नॉट फोर्स्ड टू इनरोल इन द स्टडीज। इसके अलावा जो आप जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हैं कि आपको मिनोसाइक्लिन की स्टडी करनी है, नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको मिनोसाइक्लिन का पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता है। जो क्लिनिशियंस जो इन्वॉल्व हैं इसमें वो, और आपका जो लिटरेचर है वो भी इसको सपोर्ट करे। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सारी ही रिसर्चेस जो है वो जितनी भी हो रही है वो उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं कि मिनोसाइक्लिन रिड्यूसेस डिप्रेसिव सिम्टम्स या स्किज़ोफ्रेनिया के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देयर शुड बी एडवोकेट प्रपोज लिटरेचर कि आपको वो सपोर्ट कर रहा हो, आपके प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रहा हो कि व्हेन यू विल अप्लाई फॉर द एथिक्स अप्रूवल, देन दे विल सी कि अच्छा कुछ रिसर्च हुई भी है इस टॉपिक पे, या कि हाइपोथेसिस ये इसको सपोर्ट भी करता है कि मेंटल इलनेसेस में इसका कोई रोल है। अदरवाइज तो मिनोसाइक्लिन एक एंटी एक्नी है, तो उसका क्या रोल है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन इन ब्लड, तो वो जरूरी है कि उसका एक इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो। और जो लास्ट पॉइंट है विच इज अबाउट कि आपकी जो रिसर्च है, द क्लिनिकल ट्रायल शुड बी साइंटिफिकली साउंड एंड डिस्क्राइब इन क्लियर डिटेल्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इसलिए भी जरूरी होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं अगर आप में से किसी को कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं पता। प्रोटोकॉल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि व्हेन यू डू अ रिसर्च तो आप अपने प्रोटोकॉल में पहले से ही बता देते हो कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। You have defined criteria for the recruitment of participant, for taking informed consent, for giving information to participant, where you will go to publish the research, और
कैसे आप तरीकेकार क्या होगा, आप पार्टिसिपेंट को कैसे अप्रोच करेंगे, कौन लोग होंगे जो इंटरवेंशन डिलीवर करेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनका एक्सपीरियंस क्या होगा, ये सारी चीजें आप अपने प्रोटोकॉल में बता देते हैं। अच्छा, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि व्हेन यू पब्लिश योर रिसर्च, आप क्योंकि आगे हम अभी देखेंगे इस पे कि व्हाई रिसर्च प्रोटोकॉल को फॉलो करना जरूरी है। अदरवाइज रिव्यूअर्स आस्क यू क्वेश्चन कि आपने प्रोटोकॉल में तो ये चीज लिखी थी लेकिन आपके रिसर्च पेपर में ये शो नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ टाइम वी गेट कमेंट्स फ्रॉम रिव्यूअर्स, तो वो दे आर वेरी दे हैव एक्सपर्टीज, उनकी अपनी एक्सपर्टीज होती है अपनी पेपर्स को रिव्यू करने में। तो वो जब हमारे पास वापस आते हैं एंड दे से कि इवन व्हेन यू रजिस्टर योर रिसर्च प्रोटोकॉल ऑन clinicaltrials.gov, या आपने अगर पहले से पब्लिश कर लिया है, they come back to you because they go and read these and they come back to you, they said that no, this skill was not present in your protocol, लेकिन आप अभी पेपर इसमें अपने रिसर्च पेपर में बता रहे हैं कि नहीं ये भी हमने यूज किया था। तो ये डिस्क्रिपेंसीज फिर बाद में आ जाती हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जब रिसर्च अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, यू हैव क्लियरली डिफाइन प्रोटोकॉल जिसके बेसिस पे आप अपनी रिसर्च स्टार्ट करेंगे। हमने बात कर ली कि रिसर्च जो है वो प्रोटोकॉल आपके पास हो और आपके पास एक इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी का अप्रूवल बहुत जरूरी है, और इसके अलावा रिसर्च प्रोटोकॉल को adhere करना, उसकी कंप्लायंस करना बहुत जरूरी है। अच्छा, नॉट ओनली हमने ये बात कर ली कि इन्वेस्टिगेटर्स क्वालिफाइड हों, हमने ये बात कर ली कि जो लेकिन ये भी जरूरी है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि व्हेन यू आर कंडक्टिंग द क्लिनिकल ट्रायल, तो उस रिसर्च में जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो रिसर्च असिस्टेंट हैं, वो थेरेपिस्ट हैं, जो भी हैं, दे हैव देयर नॉलेज ऑफ द ड्यूटी, के जो उनको जॉब असाइंड है वो उनको पता है, दे हैव एक्सपीरियंस कि किस तरह जो है वो कौन सी ड्यूटीज उनको असाइन है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी को एक सिर्फ आउटकम असेसमेंट करनी है, जब एक रिसर्च प्रोटोकॉल हो रहा है, किसी को सिर्फ आउटकम असेसमेंट करनी है, देन दे कांट बी इन्वॉल्व इन इंटरवेंशन। हमें ये पता है कि जो ब्लाइंड रेटर्स हैं उनका काम ये है कि वो इंटरवेंशन में एंगेज नहीं होंगे, लेकिन उनको सिर्फ आउटकम असेसमेंट्स करनी है। क्यों उनको आउटकम असेसमेंट्स करनी है? बिकॉज वी वांट कि जो आउटकम असेसमेंट कर रहा हो उसको ये ना पता हो कि पार्टिसिपेंट जो है वो किस ग्रुप में था। तो ये बहुत जरूरी है कि उनकी ट्रेनिंग और उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो उस टास्क को करने के लिए जो है वो उनकी क्वालिफिकेशन है उस टास्क को करने के लिए। इन्फॉर्म कंसेंट should be obtained from every individual who is जिनको आप अप्रोच कर रहे हैं। इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्फॉर्म कंसेंट में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं और कैसे लिया जाता है इन्फॉर्म कंसेंट, कैसे लिटरेट से लिया जाता है और कैसे इलिटरेट से लिया जाता है इन्फॉर्म कंसेंट। तो ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अमीर, और सॉरी मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली बात अमीर कह रहे हैं, ये जब हम साइट फाइल बनाते हैं उसमें हमारा डेलीगेशन लॉग होता है, शीट होती है, उसी में लाइक स्टार्ट ऑफ साइट फाइल हम सबको पता है कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट में बन जाती है। उसी टाइम पे जो है लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि कौन जो है वो आरए होगा, कौन थेरेपिस्ट होगा, कौन जो है वो फॉलोअप्स करेगा, कौन इंटरवेंशन डिलीवर करेगा। ये उसमें ऑलरेडी विद इनिशियल्स मेंशन कर दिए जाते हैं डेलीगेशन लॉग में लोग जो है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सैरिश आपने वो की पॉइंट आउट। जस्ट वांटेड टू लेट अदर्स नो बिकॉज व्हाट वी डिसाइडेड इज कि हम ये बेसिक इसको रखेंगे, एडवांस लेवल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उस पे करेंगे, क्योंकि जो जैसे सैरिश ने कहा डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज या वो जो गवर्नेंस या उससे रिलेटेड जो भी ट्रायल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, तो हमारी एक और वर्कशॉप इंशाल्लाह बहुत सून वो हम अनाउंस करेंगे, जिसमें पूरा रिसर्च का जो प्रोटोकॉल जो फॉलो होते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर हम इसको एथिक्स और गवर्नेंस पे वो करेंगे, तो ये सारी चीजें, तो सॉरी हमने इसमें ये चीजें कवर नहीं की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी कि सैरिश ने जो है वो हमें बता दें। बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट वी हैव 2 hours, so we have limited it just with basic knowledge.
और another point is कि अगर आप लोगों में से कोई भी किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन थ्रू आउट करना हो तो वो कर सकते हैं. डोंट वेट फॉर द एंड ऑफ द वर्कशॉप, अदरवाइज हम मिस कर जाएंगे. एंड सेकेंडली, आई recognize a number of people who have joined, but if there is anyone who is not part of PIL or who is out of जो जिसने पहले कभी कोई वर्कशॉप, आई थिंक समवन इज देयर, तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी पॉइंट. So before I go to next slide, just 1 minute I will spend and about that. Anyone who want to tell about, हम बात तो कर रहे हैं रिसर्च की और रिसर्च से रिलेटेड एथिक्स की. Can someone tell us what is research? Anyone who want to volunteer? Yes, sir. Basically, there are 3 purposes of research. Like, is the term research by itself saying research means to search something again. Basically, इसके 3 purposes हैं. To identify the gap, to fill the gap, or to discover something new. Like in the pandemic, we are looking for the vaccine, so it is something like new. Yeah, for create new knowledge. Yeah. Thank you, फारूक. बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपने बताया. Anyone else? If anyone else want to volunteer? Scientific method to find out the solution of problem or to find out the answer of question. Okay. Yeah, exactly. Sir, मैं बताऊं? Please. रिसर्च किसी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उस पे रिसर्च करना और उसका सॉल्यूशन देना. इज इट करेक्ट? बिल्कुल. सो इट्स अबाउट यू नो के अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, द अटेम्प्ट टू ड्राइव जनरलाइजेबल न्यू नॉलेज बाय एड्रेसिंग क्लियरली डिफाइंड क्वेश्चंस विद सिस्टमैटिक एंड रिगोरियस मेथड. तो रिसर्च न्यू नॉलेज भी आप गेन करते हैं और आप एग्जिस्टिंग नॉलेज से भी न्यू नॉलेज निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे सिस्टमेटिक रिव्यूज होते हैं. तो बिकॉज रिसर्च जो है ना, वो हमेशा ये नहीं होता कि रिसर्च जो है वो प्राइमरी हो, रिसर्च सेकेंडरी भी होती है. रिसर्च जो है वो आप डायरेक्ट, एक प्राइमरी तो ये है कि आप डायरेक्टली जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप अपना जो है वो किसी भी इन्वेस्टिगेटिव प्रोडक्ट पे कर रहे हो. लेकिन सेकेंडरी रिसर्च भी होती है कि जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है ऑलरेडी, उससे भी आप फाइंड आउट करते हो, आप नई चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. आप जो है वो ये देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल, जस्ट वन एग्जांपल एंड आई विल गो विद द एथिक्स, कि आपने देखा कि एक मिनोसाइक्लिन का जो है वो बहुत सारा एविडेंस अवेलेबल है और आपने एक सिस्टमेटिक रिव्यू किया कि ठीक है एविडेंस तो अवेलेबल है, लेकिन मैं ये देखूं कि अब तक कितनी रिसर्चेस हुई हैं और उन्होंने क्या फाइंड आउट किया. देन यू गो विद द सिस्टमैटिक रिव्यू और यू सी के, तो उसकी एक हायरार्की होती है. आई डोंट वांट टू गो विद द हायरार्की बिकॉज इट्स अ सेपरेट वर्कशॉप ऑफ रिसर्च वर्कशॉप ओनली, कि उसमें एक एविडेंस की हायरार्की होती है कि पहले एविडेंस कौन सा होता है, फिर कौन सा. सिस्टमैटिक रिव्यू इज आई थिंक द व्हिच इज ऑन द टॉप लेवल, एंड देन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड देन कोहॉर्ट स्टडीज, इस तरह. तो थैंक यू फॉर एडिंग दिस इनटू आवर वर्कशॉप. और जो नेक्स्ट हमारा है कि वो है एथिक्स. तो एथिक्स अभी हम शुरू से ही बात कर रहे हैं. रिसर्च तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या मॉरल प्रिंसिपल्स होंगे आपके, क्या आपकी एथिकल गाइडलाइंस हैं जिसके बेसिस पे आप वो रिसर्च करेंगे, कौन से बेसिस होंगे आपके, कौन से आपके प्रोटोकॉल्स होंगे जिस पे आप वो रिसर्च करेंगे. इट्स बेसिकली विद द, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन बीइंग्स. जब आप ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो यू हैव टू फॉलो द एथिकल प्रिंसिपल्स, द मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ द रिसर्च जो ऑलरेडी डिफाइंड है, which has been now number of years जिन पे काम हो रहा है. द गवर्नेंस. अब गवर्नेंस पे मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा.
अब ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, sorry, just before we go to governance, just to say that it's really important to know that Declaration of Helsinki, it's not a law, but they're moral principles based on human rights. So that is why it's so important, and that universally they're so accepted. And that's why your point about the moral principles defining the ethics is so good. So I just wanted to say that. Thank you. अब governance है, it's more about your organization, it's more about your way of how to do things. For example, अब मैं governance पे आपको बताऊंगा कि आपके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या स्टैंडर्ड्स किस चीज, सॉरी ये लैपटॉप में थोड़ा, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे आपकी मॉनिटरिंग के, क्या अरेंजमेंट्स होंगी आपके रिसर्च के क्वालिटी चेक के लिए, पार्टिसिपेंट की सेफगार्डिंग के लिए, क्या आपकी वो होंगी स्टैंडर्ड्स होंगे कि आप कैसे मॉनिटर करेंगे कि जो पार्टिसिपेंट्स को अप्रोच कर रहे हैं रिसर्चर्स, वो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, वो मॉरल प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरली कुछ इनमें से एग्जांपल्स बता देता हूँ, जैसे एक ट्रायल मैनेजर इज सिटिंग एट ऑफिस बट ही इज सेंडिंग हिज आरए टू फील्ड। अब वो आरए जा रहा है, हाउ यू विल इंश्योर कि वो जो आरए है उनको आपने जो बताया है वो एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट से किस तरह डील कर रहे हैं, क्या डील कर रहे हैं। तो वो ये सारा जो मैकेनिज्म है, इवन गवर्नेंस इज नॉट अबाउट ओनली कि आप एथिकल प्रिंसिपल्स देखें, इट्स अबाउट आप अपनी बजटिंग भी देखें कि आपकी जो बजटिंग है उसमें क्या इंक्लूडेड है, कितना आप जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसमें क्या आपने वही लिखे हैं जो आपने अपनी ग्रांट फंडिंग बॉडीज से को कहे थे, या आप कुछ और चीजें ही ले रहे हैं। तो आपकी क्वालिटी चेक, आपकी इवन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द ग्रांट ऑफ द रिसर्च, ये सारी चीजें गवर्नेंस में आ जाती हैं कि एंड गवर्नेंस इज नॉट अबाउट रिसर्चर्स, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए ये गवर्नेंस इज अबाउट फ्रॉम द administrative department to HR department to finance department to everyone who is working in your organization जिसका directly और indirectly research से relation है। क्योंकि अगर for example governance की जब हम बात करते हैं तो say for example finance department, now finance department ओवरऑल तो रेस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उनकी है ही है विद सपोर्ट टू को इन्वेस्टिगेटर्स, लेकिन इट्स योर फाइनेंस डिपार्टमेंट हु विल इंश्योर द गवर्नेंस ऑफ योर ऑल फाइनेंशियल थिंग्स जो आपने आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है, जिसको आप फॉलो करते हुए आप अपनी जो है वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं। सो हियर इट इज मेंशन्ड कि इट्स फ्रॉम सीनियर टू जूनियर स्टाफ। Governance is for all staff. It's for design of the research, it's for participation of the research, it's for the organization, it's for the infrastructure of the organization, or even the field work. कैसे मैनेज करना है, कैसे अंडरटेक करनी है रिसर्च, क्या आपकी पॉलिसीज होंगी, क्या आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे, दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन गवर्नेंस। क्या होगी आपके, हाउ यू विल गिव इंफॉर्मेशन, आपकी आप जब पब्लिश करेंगे तो उसमें आप क्या ऐड करेंगे, इवन यू इन्फॉर्म टू यूर पार्टिसिपेंट्स एज वेल। ठीक है कि इंफॉर्मेशन गवर्नेंस की एक बहुत अलग वर्कशॉप है, खैर मैं उस पर ज्यादा वो नहीं करूंगा, लेकिन अगर सिमिलर थोड़ा सा मैं बता दूं कि इंफॉर्मेशन गवर्नेंस ज्यादातर डील करता है कि हाउ यू विल डील विद द इंफॉर्मेशन व्हिच पार्टिसिपेंट इज गिविंग यू। वो अपनी बहुत दे एक्चुअली हेल्प अस, पार्टिसिपेंट जो रिसर्च पार्टिसिपेंट है वो हमारी हेल्प करते हैं, that they should be very respectable for us। तो आपको जो भी आपकी रिसर्च में चीजें इन्वॉल्व हैं वो सारी, और किस तरह आपका स्ट्रक्चर होगा, अभी थोड़ा सा हम एसओपीज के बारे में भी पढ़ेंगे, मुकद्दस विल टेल यू अबाउट के क्या एसओपीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं विद एग्जांपल ऑफ 1 or 2। तो
ये बहुत जरूरी है। सो डोंट थिंक कि जो रिसर्चर्स हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए सिर्फ गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है या उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्टली पेशेंट से जो है वो कांटेक्ट में है। सो इट्स अबाउट ऑल ऑफ अस, इट्स अबाउट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। Can I just, Amir, add here that governance is the rules and regulations, as you said, and you can hold people to account. It's for accountability reasons. So your standards, as you said, your SOPs, you know, all these things, the organization in itself and the people and who are involved is held to account by governance. Yes, exactly. Thank you. So मैंने ये बता दी हैं बातें, जस्ट क्विकली मैं स्लाइड को वो करूँगा कंक्लूड, कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं आपकी गवर्नेंस के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉल ऑन 5 डोमेन्स, जिसमें एक आपकी क्वालिटी ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, और आपकी कि मतलब आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं, इज इट, क्या वो अप्रोप्रिएट डिज़ाइन के साथ हो भी रही है, या इट इज़ लाइक there is no justified way of doing it? क्या आप ethical principles follow करते हुए वो कर रहे हैं? जो आप information collect कर रहे हैं, do participant know about that? और जो आप information collect कर रहे हैं उसको आप handle कैसे कर रहे हैं? So it's not about information collecting, it's about information जो आप collect करके फिर आप उसको जो store कर रहे हैं, तो आपका storage, आपकी confidentiality, because this is something which participants tell you about themselves. Now it's your duty कि जो वो information दे रहे हैं उसको आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो हमारा एक एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं हम कि व्हेन वी कलेक्ट रिसर्च, व्हेन वी कलेक्ट डेटा, वी टेल पार्टिसिपेंट कि आप हमें जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस इंफॉर्मेशन का जो वो हिस्सा जो किसी भी तरह आपको आइडेंटिफाई कर सकता है उसको हम सेपरेटली, जब हम जैसे ही हमने आपकी असेसमेंट कर ली, हम सेपरेटली उसको डीअटैच करके सेपरेट लॉक कर देंगे, एंड इट विल बी नॉट टोल्ड टू एनीबॉडी, इवन इट कांट बी पब्लिश्ड, कि उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, ऐसी कोई भी चीज जिससे पार्टिसिपेंट आइडेंटिफाई हो सकता है वो आप अपनी पब्लिकेशन का हिस्सा नहीं बनाते और नहीं आप बना सकते। एंड यू टेल योर पार्टिसिपेंट्स कि ये चीज हम, इन सम केसेस आप बताते हैं, इन सम केसेस आप करते हैं, लेकिन वो आगे चल के आपको मुकद्दस बताएंगे कि कब हम जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी और उसकी ब्रीच कब होती है और कब हम करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ पेशेंट एंड फाइनेंसेस, क्योंकि फाइनेंसेस इसलिए क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यू नो फंडिंग, इट्स ऑल अबाउट व्हेन यू, बिकॉज रिसर्च आप करते हैं, यू अप्लाई फॉर फंडिंग, तो वो बात सारी जो है वो आपकी फंडिंग की आती है ना, पैसों की बात होती है सारी। तो अगर आप अपनी फाइनेंसेस मैनेज नहीं करेंगे तो वो आपको it will be problematic for you, or I mean funding body will ask you, because it's, I think every funding body ask you, they ask for the quarterly reports or 6 months report or yearly reports depending on their requirement कि क्या होती है, तो आप उनको रिपोर्ट करते हो क्या एक्सपेंसेस और कहाँ हो रहे हैं। तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, और तो बहुत हो सकते हैं जो आप मतलब अपने फॉलो कर सकते हैं, बट ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं जो एटलीस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन व्हेन कंडक्टिंग अ रिसर्च शुड फॉलो। तो ये खैर उन्हीं की डेफिनेशंस हैं जो मैं वैसे बता चुका हूँ। डेटा प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी अगेन, और डेटा प्रोटेक्शन के एक्ट्स हैं के डिफरेंट एक्ट्स हैं, मोस्टली यूके 1998 डेटा प्रोटेक्शन एक्ट फॉलो होता था, लेकिन अब अपडेट भी हो गया है। अब इज समवन प्लीज हेल्प मी, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। आई थिंक जनरल डेटा प्रोटेक्शन, GDPR, yeah, thank you, it's been updated, it's now अब GDPR ज्यादातर जो है वो फॉलो हो रहा है हर जगह पर, लेकिन obviously it's not about the UK only, but it's about your country। आप जहाँ रिसर्च कर रहे हैं उनकी लोकल जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं वो क्या हैं, उनको आपने फॉलो करना है। एंड अगेन यू आर, और क्योंकि
जब आप फंडिंग अप्लाई कर रहे होते हैं, जब आपका प्रोटोकॉल आप डिजाइन कर रहे होते हैं, तो व्हाट यू डू इज आप डिफाइन करते हैं कि आप डेटा प्रोटेक्ट किस तरह करेंगे, आप कहाँ स्टोर करेंगे, आपके स्टोरेज की टाइम लिमिट क्या होगी। मोस्टली कहते हैं कि 10 ईयर्स हम हार्ड कॉपीज रखेंगे, 10 ईयर्स हमारे पास हार्ड कॉपीज मिनिमम बस उस पर होगी। तो ये सारी चीजें आपका डेटा मैनेजमेंट प्लान जो होता है उसमें आप अपनी बताते हैं कि ये हम वो करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी अगेन, पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप सेपरेट तरीके से करके रखते हैं। तो और इसके अलावा जो आपकी जो उस रिसर्च से जो आपकी आईपी डेवलप हो रही है, जो आपका अपना जो आपकी इंटरवेंशन है या जो भी है, तो वो उसकी कंसिडरेशंस भी बहुत जरूरी है आपकी आईपी की। मैं आईपी पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक रिगार्डिंग आईपी ओनली, जो कि हम आजकल कर रहे हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में भी। I will try to complete my part in next few minutes because मैं शायद टाइम से ओवर जा रहा हूँ। Yes. So the roles and responsibilities of a sponsor. So anybody who knows about who research में sponsor कौन होते हैं, who is a sponsor, और अगर कोई एक दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज विल गो। मैं बताऊं या कोई और बताएगा? नहीं, आप नहीं बताएं, आप सब बताएंगे तो फिर बाकी लोग कैसे बताएंगे? कोई बोले ना, फिर बाकी बताएं। Anyone who knows? I think the one who is सर funding जैसे the research. नहीं सर, लाइक पिल स्पॉन्सर बता रहे हैं। सर, जैसे पिल वो है स्पॉन्सर। ओके, फारूक आप कुछ बता रहे थे। Yes, sir. The one who is funding the research, like we can say a body like NIH or something like that, which are producing actually the money and guidelines that this is the problem, you have to go like this, and we will be funding for that, and we want these results. Just wanted, जी सर स्पॉन्सर वो जो कि जिस यूनिवर्सिटी के थ्रू या जिस इंस्टीट्यूट के थ्रू आप रिसर्च कर रहे हो वो तो नहीं? स्पॉन्सर एक्चुअली आपकी फंडिंग बॉडी नहीं होती, बिकॉज जो जैसे फारूक आप कह रहे हैं ना, तो MRC या NIHR इज अ फंडिंग बॉडी, तो दे फंड यू द रिसर्च। लेकिन जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रिसर्च को, इट्स एन इंडिविजुअल, इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी अ इंस्टीट्यूशन, जो डायरेक्टली रिसर्च जो है वो जो आपकी वो है जिसको आप जो उनको मैनेज कर रहे हैं, उनके फाइनेंसिंग को मैनेज कर रही है, दे आर स्पॉन्सर। सो अच्छा, स्पॉन्सर में भी ना एक डिफरेंस है। जी जी, कोई कहना कुछ चाह रहा है? फारूक I just said okay sir, thank you, मतलब अभी मुझे क्लियर हो गया। ओके ओके, बिकॉज अब फॉर एग्जांपल कुछ होते हैं डायरेक्ट स्पॉन्सर्स, ठीक है। अगर मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने फंड किया यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन को, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन इज अ डायरेक्ट स्पॉन्सर। बट जो इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल वो रिसर्च जो है वो पाकिस्तान में हो रही है, और वो रिसर्च जो है वो पिल कर रहा है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट स्पॉन्सर हो गया कि जो जिसको फंडिंग अनाउंस हुई, जिसको फंडिंग मिली, अब पिल जो है वो उसको एडमिनिस्टर कर रहा है रिसर्च ग्रांट को। लेकिन अच्छा, एक ये थोड़ा ना मे बी कंफ्यूजिंग भी हो, मैं थोड़ा उसमें करता हूँ कि एक स्पॉन्सर जो है वो फंडिंग बॉडी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, पिल कैन फंड हिज रिसर्च टू इट्स ओन, के सेल्फ फंडेड स्टडी। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अगर पिल अपनी रिसर्च को खुद फंड भी कर सकता है, खुद स्पॉन्सर भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची अपनी रिसर्च अगर उन्होंने रिसर्च खुद फंड किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची कैन बी फंडिंग बॉडी एज वेल एज स्पॉन्सर, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची तो फंडिंग बॉडी है लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी स्पॉन्सर है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है वो इसमें वो हमें देखना है कि जो स्पॉन्सर है वो जो आप जिसको मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन फंडिंग बॉडी कौन है, और इट कैन बी सेम, इट कैन बी डिफरेंट एज वेल। हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फंडिंग बॉडी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पॉन्सर उसकी क्या होती हैं? ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज
आपकी साइट सिलेक्शन, कहाँ रिसर्च होगी, आप अपनी ग्रांट एप्लीकेशन में, अपनी फंडिंग एप्लीकेशन में ऑलरेडी बता देते हैं ये रिसर्च साइट्स होंगी। इन एडिशन आप साइट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू टेल यूर रिसर्च फंडिंग बॉडी बिफोर डूइंग दैट, और इवन एथिक्स कमेटी एज वेल। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर एग्जाम्पल ये होता है ना कि जैसे रिसर्च जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा भी है, व्हाटएवर, और इंस्टीट्यूट्स भी हैं। अब मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने तो ग्रांट दे दी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची स्पॉन्सर हो गया, लेकिन जो लोकल एग्रीमेंट्स हैं, अब यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इज अ मेन स्पॉन्सर, नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची विल इंश्योर कि जो बाकी फंडिंग, जो बाकी एग्रीमेंट्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची करेगा, वो एमआरसी नहीं करेगा, या वो फंडिंग बॉडी एनआईएचआर नहीं करेगा। जो लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स है वो आपका लोकल स्पॉन्सर करेगा। ड्यूटीज की एलोकेशंस क्या होंगी, ट्रायल की मैनेजमेंट, डेटा कलेक्शन, पार्टिसिपेंट्स के रीइंबर्समेंट, आप कंफर्मेशन के रिव्यू, अप्रूवल, आया इंफॉर्मेशन ऑन अप्रूवल, और इंफॉर्मेशन ऑन इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग ट्रायल है तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी पैकिंग, लेबलिंग, कोडिंग, सब स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो एडवर्स अगर इवेंट्स वगैरह कोई हो तो उनकी रिपोर्टिंग, उनकी मॉनिटरिंग, रिकॉर्ड कीपिंग और ऑडिट, ये सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दीज आर जस्ट फ्यू बट नॉट लिमिटेड टू, और भी इसमें आ सकती हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। ये तो हमने जान लिया कि स्पॉन्सर कौन हो सकते हैं, लेकिन सपोज एमआरसी ने ग्रांट दिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर को, तो स्पॉन्सर तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर हो गई, बट एमआरसी क्या है, मतलब उनको क्या कहेंगे? एमआरसी इज अ फंडिंग बॉडी फारूक। ओके, एमआरसी इज अ फंडिंग बॉडी। सो ये टर्म यूज होता है कि डिफरेंट, क्योंकि अगर हम एमआरसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि फंडिंग बॉडीज, ये कौन सी फंडिंग बॉडी है, किसने फंड किया इसको। आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो मोस्टली फिर आपको बताते हैं कि एनआईएचआर ने फंड किया है, या एमआरसी ने फंड किया है, या वेलकम ट्रस्ट ने फंड किया है, तो दे आर फंडिंग बॉडीज who fund different research projects. Is it clear, Farooq? Yes sir, thank you. Okay. सर जी सर अगर रिसर्च प्राइवेट कंडक्ट की जाए तो स्पॉन्सर फिर कौन होंगे? सॉरी, अगर प्राइवेट रिसर्च कंडक्ट की जाए मतलब विदाउट इंस्टीट्यूट, तो स्पॉन्सर उस वक्त कौन होंगे? उस वक्त स्पॉन्सर जो है वो इंडिविजुअल होगा जो वो कर रहा है। तभी मैंने बताया ना, इफ यू जस्ट गो बैक स्लाइड्स, के स्पॉन्सर कैन बी, सॉरी मेरा शायद ये स्टक हो गया है। हाँ, स्पॉन्सर जो है इट कैन बी एन इंडिविजुअल, कंपनी, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। So if you are doing a private research like as a student project, तो नाउ अब इट डिपेंड्स कि अगर स्टूडेंट प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी से फंडेड है तो यूनिवर्सिटी आपकी स्पॉन्सर है, ठीक है। लेकिन आप अलग एक आप कर रहे हैं, सेपरेट एक प्राइवेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप एज ए इंडिविजुअल आप स्पॉन्सर हैं। Amir, I presume that as an individual you won't be able to get ethical approval, and it must be quite difficult as an individual if you're not within an institution or an organization. Have you had any? Yes, Rakshibaji, because even for the student projects, there are within the university there are approval bodies. तो स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स भी वो जो है वो वहां से अप्रूव होते हैं। हाँ, you have to be within an organization or an institution. बिल्कुल, उनके अपनी एक इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से अप्रूव होते हैं फिर वो स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स भी। Exactly. एफिलिएशन होनी चाहिए किसी इंस्टीट्यूट से। एफिलिएशन होनी चाहिए। That's what I thought. Yeah. Okay. So we're running a bit late, Amir, just to. बस मैं जल्दी इसको पर I have 4 minutes, तो मैं 4 minutes में अपना पार्ट पूरा करूंगा। But it's really interesting. It's really good. Yeah.
सो इन्फॉर्म कंसेंट की हम बात कर रहे थे। तो इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो आपका सारी इंफॉर्मेशन आपके रिसर्च के बारे में यू गिव टू योर रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। दो चीजें यूज होती हैं लेकिन दे आर काउंटेड इन इन्फॉर्म कंसेंट के, पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन, लीफलेट एंड इन्फॉर्म कंसेंट। तो बाज़ दफा आपको वो सेपरेट फॉर्म जरूर मिलेंगे बट दे आर काउंटेड इन इन्फॉर्म कंसेंट के आप पार्टिसिपेंट से अपनी रिसर्च के बारे में उनको सब बता रहे हो जो आप कंडक्ट कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो आपका इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो उसमें सारी चीजें मेंशन हो, रिस्क बेनिफिट। ये ना हो कि आप सारे बेनिफिट्स बता दें और आप रिस्क बताएं ही ना कि इसके रिस्क क्या है। जैसे ये पिक्चर बहुत अच्छा शो कर रही है कि इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्फॉर्म कंसेंट को रीड करना ही बड़ा रिस्क है, कि इतना बड़ा भी इन्फॉर्म कंसेंट ना हो कि वो सारा जो है वो सिर्फ उनको इतना टाइम लग जाए सिर्फ इन्फॉर्म कंसेंट पढ़ने में और वो कोई सेंस ना करे। ठीक है, तो टू द पॉइंट शॉर्ट, लेकिन सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हों आपके इन्फॉर्म कंसेंट में। व्हाट द रिसर्च विल इन्वॉल्व, कौन रिसर्च कर रहा है, कहाँ रिसर्च हो रही है, कौन इसमें पार्टिसिपेंट कर रहा है और कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कितने टाइम पीरियड की होगी, पार्टिसिपेंट को कितना टाइम चाहिए होगा आपको, ये सारी चीजें आपको उसमें देनी होती हैं और आपको फिर वो फाइंड कराने होते हैं इन्फॉर्म कंसेंट अपने पार्टिसिपेंट से। इन्फॉर्म कंसेंट में एक की इशू आता है, वो ये आता है कैपेसिटी टू कंसेंट। अच्छा, डोंट कंफ्यूज इट विथ उसमें के एक चीज मोस्टली व्हेन आई वाज रीडिंग तो ये मुझे मिली भी कि डोंट जज योरसेल्फ, मतलब रिसर्चर खुद से जज ना कर दे कि अगर मैं स्किज़ोफ्रेनिया के साथ फॉर एग्जांपल काम कर रहा हूं तो दे डोंट हैव कैपेसिटी, दे डू हैव कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट, कैपेसिटी टू कंसेंट वो करना इसलिए जरूरी है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि जिससे आप कंसेंट कर रहे हैं, कंसेंट ले रहे हैं, उनमें ये अंडरस्टैंडिंग भी है, ये कैपेसिटी भी है कि वो जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं उसको, या उनमें पढ़ने की या समझने की उतनी एबिलिटी नहीं है, या वो नहीं समझ पा रहे बिकॉज ऑफ देयर इलनेस। या तो उसके लिए एक बहुत जो अच्छी प्रैक्टिस है वो ये है कि आप यू मेक एवरी एफर्ट टू टेल यूर पार्टिसिपेंट के जो है वो इन्फॉर्म कंसेंट, उसमें कंसेंट में क्या क्या होगा कि वो अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन इन केस यू सी आप देखते हैं कि नहीं इतनी सीवियर इलनेस है, फॉर एग्जांपल एमआर है, अब एमआर के साथ भी तो रिसर्चेस तो होती होंगी, लेकिन एमआर की जो है वो मे बी आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन कैपेसिटी टू कंसेंट उनमें बहुत फिर चैलेंजिंग होता है कि उनकी कैसे की जाए। तो उसके लिए फिर होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हो, आप किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को इन्वॉल्व करते हो इन कंसेंट, या पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हो, या जो उनके केयर टेकर्स, केयर गिवर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हो। तो ये जस्ट एज टर्म कि ये बहुत जरूरी है कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं और जिन पार्टिसिपेंट्स के साथ आप कर रहे हैं, यू हैव टू इंश्योर कि उनमें कैपेसिटी है कंसेंट करने की, कंसेंट देने की। इफ नॉट then you involve third party, you involve independent person to के या पेरेंट्स जो आप जो जिनके सामने आप जो है वो कंसेंट लेते हो। अब इन्फॉर्म कंसेंट लेने का तरीका क्या है? अगर पार्टिसिपेंट लिटरेट है, लिटरेट से लेने का तरीका क्या है? वेरी सिंपल, वेरी के उसको आप जो है वो रिसर्चर जो है वो उनको एक्सप्लेन करता है। इसमें आ रहा है एडमिन में। हाँ, सोबिया, आई थिंक यू आर म्यूट योर माइक। रिसर्चर जो है वो उनको आप एक्सप्लेन करता है, उसके बाद जो पार्टिसिपेंट है वो पर्सनली रीड करेगा इन्फॉर्म कंसेंट उनकी अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद अगर कोई सवाल हैं तो वो पूछे जाएंगे रिसर्चर से, और जो पार्टिसिपेंट है वो पर्सनली साइन करेगा और डेट इन द प्रेजेंस ऑफ रिसर्चर, और फिर आप एक कॉपी अपने रिसर्चर को देते हैं और एक कॉपी रिसर्चर अपने पास रखते हैं और एक कॉपी जो है वो उनको दी जाती है पार्टिसिपेंट को। इन्फॉर्म कंसेंट की ये बहुत जरूरी है कि आप इसको रखें अपने पास, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि रिसर्चेस में लीगल मैटर्स अराइज हो जाते हैं, तो साइन कॉपी आपके पास रखी होनी चाहिए थ्रू आउट, इवन आफ्टर द रिसर्च प्रोजेक्ट एज वेल। जब तक आप डेटा स्टोर करते हो जो भी आपका वो है, तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई लीगल मैटर साइन होता है
तो उसके लिए भी खैर एक एथिकल प्रिंसिपल, एथिकल तो है ही है, लेकिन आपको लीगल वे में भी हेल्पफुल के आप जो है वो कभी कोई लीगल मैटर भी अराइज हो सकता है। तो लिटरेट्स के लिए जब आप इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं तो ये आप तरीके का फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप किसी इलिटरेट से, मतलब जो अगर किसी की एजुकेशन नहीं है, जब आप कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उससे आप जब ले रहे होते हैं इन्फॉर्म कंसेंट, तो आपको साथ में किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को साथ में रखते हो, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा जो पार्टिसिपेंट खुद डिसाइड करेगा ऑन बिहाफ ऑफ हिम और हर कि अगर वो उनको रीड करके सुनाएं, उनको बताएं, उनको एक्सप्लेन करें, और जब वो उनके समझ में आ जाए तो वो पार्टिसिपेंट तो थंब प्रिंट देगा, लेकिन जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो साइन करेगा। ये उस केस में होगा जब आपका पार्टिसिपेंट इलिटरेट है, तो आप मतलब साथ में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बुला के, और वो लीगल रिसर्चर जो है वो नहीं रीड करेगा इन्फॉर्म कंसेंट या इंफॉर्मेशन शीट, बट द जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि पार्टिसिपेंट तो पढ़ा लिखा ही नहीं है ना, उनको तो देने का कोई फायदा नहीं है, जो वो डिसाइड करेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो रीड करेगा, वो बताएगा उनको कि ये रिसर्च है, इसमें ये बेनिफिट्स हैं, ये हैं, जो भी वो पूरा पढ़ के, एंड देन एज अ विटनेस वो भी साइन करेगा और पार्टिसिपेंट अपना थंब प्रिंट उस डॉक्यूमेंट पे देगा। इन केस अगर दोनों ही इलिटरेट हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी इलिटरेट है और पार्टिसिपेंट भी इलिटरेटिव है, तो फिर हम एक इम्पार्शियल विटनेस बुलाते हैं, थर्ड पार्टी कोई और बुलाते हैं कि वो उन दोनों की मौजूदगी में वो पढ़ के सुनाए और बताए उनको। और इसके अलावा जो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, और जो वो कोई सवाल अगर है तो वो सवाल पूछेंगे, और सवाल के बाद, सवालों के जवाब देने के बाद कंसेंट लिया जाता है, और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो थंब इम्प्रेशन देंगे, और इम्पार्शियल जो विटनेस है वो साइन करेंगे। एंड देन अगेन 2 कॉपीज, वन फॉर रिसर्चर एंड वन फॉर पार्टिसिपेंट। तो वो आप, ये एक तरीके का होता है जब आप कंसेंट ले रहे हो पार्टिसिपेंट से। इट्स इम्पोर्टेंट, जब आप पार्टिसिपेंट से कंसेंट ले रहे होते हैं तो आप जो इंफॉर्मेशन है वो आप पार्टिसिपेंट को डिसाइड करने के लिए एटलीस्ट 48 to 72 आवर्स दें, जिसमें वो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स या जिससे भी डिस्कस करना चाहें, अपने डॉक्टर या जिससे भी डिस्कस करना चाहें तो वो उनसे डिस्कस कर सकते हैं। This is an activity. Read this case and identify ethical issues in this case. We will spend just no more than 1.5 minutes in this. Read करें और बताएं इसमें क्या ethical issues हैं। Anyone volunteer? Me. चलें सैरिश, आप ही बताएं। नहीं पता। पार्टिसिपेंट जो है वो सिंधी पढ़ सकता है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन लीफलेट जो है वो अवेलेबल नहीं है और आपने सिर्फ खुद ही उस वक्त ट्रांसलेट करके उसे साइन करवा लिया, तो ये प्रैक्टिस सही नहीं है। अगर वो सिंधी पढ़ सकता है तो इन्फॉर्मेशन लीफलेट जो है वो सिंधी में होनी चाहिए, कंसेंट फॉर्म सिंधी में होना चाहिए, वो पढ़े और फिर वो साइन करे। देयर इज लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर, और अगर सिंधी में अवेलेबल नहीं था, फॉर एग्जांपल अगर उसकी दूसरी, तो जो उन्होंने तो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट से साइन करा लिया, दे शुड कॉल समवन थर्ड पर्सन उसके साथ लाके आप। ठीक है, वी हैव सेकंड केस। ये तो बहुत आसान है, सब बताएंगे। मैं बता दूं? बता दो। मैं बता दूं? महेश्वरी तुम बता दो। इंग्लिश आप बताते हैं, बड़ी
नहीं, आप बताओ, कोई बात नहीं। सर ये एथिकली पहले वो है, लीगली है ना, हमने पहले स्क्रीन किया जबकि हमने एथिकली बाद में हमने वो सबमिट करवाया, तो ये राइट नहीं है। पीआरसी बाद में सबमिट करवाया, स्क्रीन पहले किया है। ठीक है, एथिकल अप्रूवल बाद में लिया और स्क्रीनिंग पहले कर ली। जी। So it's not a good practice. Legal right. Yeah. Okay, that's all from me. Thank you very much for listening, and I will hand over to Muqaddas now. Thank you, Amir. That was really, really interesting. Well done. Thank you. Muqaddas? Thank you. Over to you. So, yes, thank you, Rakshiba ji. Before we talk about the confidentiality, अगर आप में से कोई मुझे बताए, what do you understand from confidentiality? Participants' information. Anyone? Yes, participants' personal information, जो उसको लगता है कि उसकी वजह से उनको कोई personal directly or indirectly harm हो सकता है in the near future or right at the moment. पर्सनल इंफॉर्मेशन पेशेंट की जो उसके रिजल्ट से पता चल रही है, वो उसको सेफ रखना, उसको किसी और के सामने ओपन नहीं करना, इट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। पार्टिसिपेंट की आइडेंटिफिकेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कॉन्फिडेंशियलिटी की जब हम बात करते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी एक एथिकल प्रिंसिपल है जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि हमारे पास जो पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है, हमें सिक्योर रखना है, ठीक है। और ये पार्टिसिपेंट का, हमारा जो पेशेंट है उसका राइट है कि उसे पता हो जो भी वो इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहा है वो हम किसी भी थर्ड पर्सन या किसी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन, किसी थर्ड एजेंसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, और वो हमारे पास प्राइवेट और सिक्योर रहेगी जो भी वो इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, ठीक है। और हम जब रिसर्च कर रहे हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ तो हम कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हैं ताकि हम अपने पार्टिसिपेंट्स की जो आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रख सकें। जैसे हम अपनी रिसर्च में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, हम अपनी जो असेसमेंट्स करते हैं और हमारे पास जो कंसेंट फॉर्म्स होते हैं, हम कंसेंट फॉर्म्स को अलग, जिसमें आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन होती है, हम उनको अलग सेपरेट फाइल्स में रखते हैं और हमारी असेसमेंट फॉर्म जो होती हैं वो अलग सेपरेट फाइल्स में होती हैं। और हर पार्टिसिपेंट को हम एक आइडेंटिफिकेशन कोड देते हैं जो कि स्टडी का आईडी कोड होता है, ताकि जो डायरेक्टली जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन ना हो सके। तो हम स्टडी स्पेसिफिक उनको आईडी असाइन करते हैं और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इस तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी को उसको मेंटेन करते हैं। कि हम जब भी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं तो हमें एक तो हम सबसे पहले ये मेक श्योर करते हैं कि हम पार्टिसिपेंट के साथ उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी के जो लिमिट्स हैं उनको भी करें। हम अपनी इंफॉर्मेशन शीट में ये चीज मेंशन करते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो हम किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं या कोई ऐसा पॉइंट आता है ड्यूरिंग द रिसर्च जहाँ पे उनकी लाइफ या किसी और की लाइफ जो है वो खतरे में है और वहां पे हमें इंफॉर्मेशन को ब्रीच करना पड़ा, तो हम उस वक्त आपकी जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो ये पार्टिसिपेंट को हम पहले ही उनको इन्फॉर्म करते हैं, इस चीज से उनका कंसेंट लेते हैं, ताकि रिसर्च में जब वो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं कभी भी हमें इंफॉर्मेशन ब्रीच करनी पड़े तो वो पहले से इसके बारे में जानते हैं। तो कुछ सूरतें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उनकी जान को खतरा है, उनको सीरियस जो है इमीडिएट रिस्क ऑफ सुसाइड है, या किसी और की जान को खतरा है, या फिर हमारे पास कोई चाइल्ड अब्यूज का इंसिडेंट, हमें कोई थ्रेट है, या मतलब अब्यूज का कोई भी थ्रेट है आपको, तो आप में जो है वो अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करते हैं।
Muqaddas, before you go अच्छा, on to the अभी हम जी before you go into जी it, are you going to talk a bit briefly about the history, or can I mention, because I was part of the history of Caldecott, how it was developed. So I just wanted to briefly mention that a Caldecott committee was formed in 1997 when the computerization came into the NHS, and Lord Caldecott was the chief medical officer at the time, and he set up a committee. And he also put a report forward, because at that time it was felt that once the information of patient information is going to get computerized, it will be shared by anybody and everybody. So to safeguard patients' information, Caldecott sort of came up, the committee came up with these principles. And what they did was they also piloted these principles, and Caldecott guardians, people in each of the sites who were responsible for confidentiality. And at that time, it just shows how old I am, that in 1997, I was managing a GP practice, and we were one of the Caldecott sites. So we tested out that this all worked as well. So I just wanted to give you an idea how it started. And then in 1998, the Data Protection Act came along as well. So over to you. Thank you. So जैसे रक्षिबा जी ने बताया, Caldecott प्रिंसिपल जो हैं वो बेसिकली हैं टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन. तो जब भी हम उनकी इंफॉर्मेशन यूज करने जा रहे हैं या हम उनकी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं कोई उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो Caldecott के इनिशियली जो उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे वो 6 प्रिंसिपल्स थे जिनको हमें एडहेरेंस करना था. लेकिन 2013 में दोबारा इसको रिव्यू किया गया और उन्होंने एक और इसमें प्रिंसिपल ऐड किया. तो वन बाय वन हम इन प्रिंसिपल्स को देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला प्रिंसिपल है वो है जस्टिफाई द पर्पस ऑफ द यूज और ट्रांसफर ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ योर पार्टिसिपेंट और योर पेशेंट. अभी पहले जैसे सर अमीर ने बात की थी कि हमारी जो पेशेंट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है उसमें हो सकता है पेशेंट का नाम हो सकता है, पेशेंट का एड्रेस हो सकता है, उसका पोस्टल कोड, उसका ईमेल एड्रेस, उससे रिलेटेड कोई भी इमेजेस हैं या कोई वीडियोस हैं या कोई भी हमारे पास ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन हमारी पेशेंट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन होगी. ठीक है, अगर जैसे कोई रेयर डिजीज से रिलेटेड भी है इंफॉर्मेशन, तो अगर उससे रिलेटेड बहुत थोड़े पार्टिसिपेंट है और उससे पेशेंट्स की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, तो ये सारी चीजें पेशेंट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन में आएंगी. तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमें कहते हैं कि जस्टिफाई द पर्पस, कि आपके पास एक क्लियर डिफाइंड पर्पस होना चाहिए कि आप इंफॉर्मेशन की क्या नीड है उसको शेयर करने की और ट्रांसफर करने की. तो जब भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, Caldecott जो गार्डियन होगा वो इस जस्टिफिकेशन को रिव्यू करेगा और अप्रूव करेगा बिफोर आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे या ट्रांसफर करेंगे. वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. सेकेंड प्रिंसिपल हमारे पास है ओनली यूज व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, कि जब बहुत ज्यादा आपको जरूरत है आप तभी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कि आपके पास उसके अलावा कोई और वे नहीं है, अब आपको इंफॉर्मेशन जो है उनकी शेयर करनी है, तो उस सूरत में आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. देन इज द यूज द मिनिमम रिक्वायर्ड, कि जब आपने जस्टिफाई कर लिया है पर्पस, आपके पास नीड आइडेंटिफाई हो गई है शेयरिंग की या ट्रांसफर की, तो आप इंफॉर्मेशन जब शेयर कर रहे होंगे तो आपने इस चीज को कंसीडर करना है कि आप मिनिमम जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करें. ये नहीं कि आप A to Z पेशेंट के का आपके पास जितना भी डाटा है या पार्टिसिपेंट का जितना भी डाटा है वो सारा का सारा शेयर करते हैं. आपको हर एक आइटम की उसकी आइडेंटिफिकेशन के जितने भी आइटम्स हैं आपको उसकी एक लिस्ट जो है वो बनानी है और आपने हर लिस्ट पे हर आइटम को आपने रिव्यू करना है
कि क्या उसका नाम शेयर करना जरूरी है, क्या उसका एड्रेस शेयर करना जरूरी है, क्या उसका ईमेल देना जरूरी है। तो जितनी भी उसकी आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड हमारे पास आइटम्स हैं, हमें वो हर एक चेकलिस्ट को रिव्यू करना है कि क्यों जरूरत है हमें कि हम जिस मकसद के लिए शेयर कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। तो हमें मिनिमम से मिनिमम शेयर करनी है। और जब भी हम शेयर कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो भी हम शेयर करेंगे वो डॉक्यूमेंटेड होगी और हमेशा क्वालिटी कोड गार्डियन जो होगा वो उसको रिव्यू करेगा और उसके बाद वो शेयर की जाएगी। फोर्थ प्रिंसिपल है हमारे पास, एक्सेस शुड बी ऑन अ स्ट्रिक्ट नीड टू नो बेसिस, कि आपको पता होना चाहिए किस जो मेंबर को किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है और उसके साथ क्या करनी है। हम जब भी अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं, चाहे वो हम हार्ड कॉपी में हमारे पास डाटा है या हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में है, वो हमेशा इस तरह से स्टोर होना चाहिए कि उसके डिफरेंट चंक्स हों, ताकि अगर आपने किसी के साथ शेयर करना है तो आप वो नेसेसरी जो भी एक पार्ट है वो उसके साथ शेयर कर सकें। तो उस वक्त ये प्रॉब्लम ना हो कि आप सारे का सारा डाटा किस तरह से दोबारा सॉर्ट करें और किस तरह से अरेंज करें कि आप एक स्पेसिफिक पार्ट पे जो है वो किसी को एक्सेस दे सके। तो इसकी एक्सेस जो है वो कंट्रोल बेसिस पे होती है और एक्सेस जो है आप पार्टिसिपेंट को देते हो कि किस सेगमेंट की किस पार्ट की उसको जरूरत है, उसकी एक्सेस देते हो। और आप ये भी देखते हो कि उसको कितनी देर के लिए जरूरत है, उतनी देर के लिए आप एक्सेस देते हो और उसके बाद आप एक्सेस वापस ले लेते हो। तो डाटा हमेशा एक फ्लो में फ्लो की सूरत में, एक फ्लो चार्ट की सूरत में हमारे पास सेव होना चाहिए, लेकिन वो सेपरेट पार्ट्स में होना चाहिए। देन हमारे पास प्रिंसिपल है, एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि जो लोग भी हैं, चाहे वो क्लिनिकल स्टाफ है, नॉन क्लिनिकल स्टाफ है, जिसके पास डाटा की एक्सेस है, डाटा को हैंडल कर रहे हैं, वो उनको क्लियरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होना चाहिए। और स्टाफ जो है उनकी रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि डाटा को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। देन हमारे पास सिक्स प्रिंसिपल है, एवरीवन मस्ट कंप्लाई विद द लॉ। हमारे जो लोकल लॉज हैं रिगार्डिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, हम उसको हमें कंसीडर करना चाहिए, ताकि ये ना हो कि जब हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो हमें कोई लीगल डिफिकल्टीज फेस करना पड़े। तो हमारे लोकल लीगल लॉज को जो है फॉलो करना वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारी जो मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है उनको फॉलो करना। देन सेवंथ प्रिंसिपल जो कि अभी दोबारा रिव्यू के बाद इन्होंने ऐड किया, वो है द ड्यूटी टू शेयर इंफॉर्मेशन कैन बी एज इम्पोर्टेंट एज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। समटाइम्स हमें ये होता है कि जब हम इंफॉर्मेशन शेयर या यूज कर रहे होते हैं तो जितना इम्पोर्टेंट ये है कि हम पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करें, उतना ही इम्पोर्टेंट, उतना ही पेशेंट के इंटरेस्ट में होता है कि हम उस इंफॉर्मेशन को शेयर या ट्रांसफर करें। जैसे अगर हमारे पास पेशेंट जो है इमीडिएट रिस्क ऑफ सुसाइड पे है या किसी की जान को बहुत ज्यादा खतरा है, तो उस सूरत में इंफॉर्मेशन शेयर करना पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में होता है। तो ये अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है कि इंफॉर्मेशन शेयर करना भी कई सिचुएशंस में इतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना कि उसको प्रोटेक्ट करना। और ये सेवेंथ लॉ जो है ना, ये सेवेंथ प्रिंसिपल ये आया जब मेनली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, because at that time there was quite a lot of terrorism happening as well. So in response to that they brought up this principle. Okay. Thank you. Next. So आगे जैसे क्वालिटी कोड गार्डियन बात की थी, तो क्वालिटी कोड गार्डियन जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम क्वालिटी कोड गार्डियन की बात करें तो वो एक सीनियर पर्सन है, प्रेफरेबली कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल हो सकता है, कोई सोशल एंड केयर प्रोफेशनल हो सकता है, डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इसका एक्सपीरियंस रहा हो पार्टिसिपेंट के साथ डाटा हैंडलिंग का, ताकि वो एडवाइस कर सके वाइज डिसीजन रिगार्डिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली इसका जो क्वालिटी कोड गार्डियन के जो रोल होते हैं
वो होते हैं टू सेफगार्ड द पेशेंट to guide the strategy for the information processing, information sharing, either it's internal or external. तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो अकाउंटेबल होते हैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है और यूज की जा रही है। तो इसलिए वो उनकी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एश्योर करें कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन डाटा हैंडल कर रही है वो हाई स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है। मुकद्दस एक चीज नेक्स्ट मुकद्दस एक चीज क्लियर करोगे जी? जो कार्डिकॉट गार्डियन की आप बात कर रहे हो, ये पीआई हो सकता है किसी भी प्रोजेक्ट का, या ये इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए? नहीं, नॉर्मली ये go ahead मुकद्दस। जी रक्षिबा जी आप बोलें। I was saying that in the UK, what happens, it's in an organization, any NHS organization has to have a Caldecott guardian, and it has nothing to do with research or anything. It's within the organizational structure. तो कोई भी senior manager ये जो है उसकी responsibilities में, उसके job plan में Caldecott guardianship भी आ जाती है। The important thing about जो मुकद्दस ने बताया ना आपको कि they are accountable as well. And when it came into being, there was a lot of debate around it because managers said that the overall accountability should go to the institution rather than to them as well. But as clinicians have the individual accountability as well, Caldecott guardians have the individual accountability as well. So it doesn't necessarily have to be a researcher. Thank you. And that's why Caldecott guardian जो भी एडवाइस कर रहा है वो हमेशा डॉक्यूमेंटेड होती है क्योंकि वो अकाउंटेबल होते हैं उस चीज के लिए। इसमें बात की गई है कि अगर आप किसी की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं और आप श्योर नहीं है उस बारे में, तो हमेशा अपने लाइन मैनेजर या आपका जो Caldecott गार्डियन है उससे जरूर एडवाइस लें इससे रिलेटेड। नेक्स्ट, अच्छा, जब आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और आप जैसे हम कंप्यूटर्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। जैसे अगर आपका डाटा जो है वो किसी कंप्यूटर डिवाइस पे या पोर्टेबल डिवाइस लैपटॉप पे सेव है, तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो कंप्यूटर डिवाइस है वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। तो जिस भी कंप्यूटर में या लैपटॉप में किसी भी फोल्डर में आपका डाटा सेव है तो वो आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड इनक्रिप्टेड फाइल होनी चाहिए। फिर अगर आप जैसे ईमेल्स के थ्रू अगर आप शेयर कर रहे हैं और आपने कोई फाइल अटैच की है तो, और आप जिसको शेयर करना चाह रहे हैं, तो हमेशा सेंड का बटन दबाने से पहले हमें रुकना है, देखना है कि जो फाइल हमने अटैच की है वो ठीक फाइल अटैच की है, जिन टीम मेंबर्स को हम शेयर करना चाह रहे हैं उनका ईमेल एड्रेस हमने ठीक डाला है, करेक्ट है वो ईमेल एड्रेस। ये चीज़ इंश्योर करने के बाद फिर हम जो है वो सेंड करेंगे। हमेशा कभी भी ईमेल के थ्रू या फैक्स के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू अगर हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो कभी भी मतलब जल्दियों में नहीं, आपको ये इंफॉर्मेशन एक टाइम लें, कंफर्टेबली उसको देखें, रिव्यू करें, उसके बाद आप उसको सेंड करें। इसी तरह आप फैक्स के थ्रू अगर सेंड कर रहे हैं तो फैक्स में आपने प्रॉपर टाइम लेना है, आपने नंबर चेक करना है, आपने नंबर ठीक डाला है, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन भेजें। टेलीफोन के थ्रू अगर आप शेयर कर रहे हैं, आप किसी को टेलीफोन पे बता रहे हैं, आप पहले तसल्ली करें कि जिसको आपने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है आप उसी से बात कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने फोन मिलाया और बस शुरू हो गए। मतलब आइडेंटिफाई करें पहले पार्टिसिपेंट के, आप पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन किसको डिस्क्लोज करनी है, आपको पता चल जाए कि अच्छा ये वही बंदा है, फिर आप इंफॉर्मेशन बताएं। उसके साथ फिर ट्रेनिंग, जैसे हम कहते हैं कि ट्रेनिंग स्टाफ की रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है और उनको रेगुलरली जो है वो ऑर्गेनाइज करना चाहिए।
अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं कि इंफॉर्मेशन को किस तरह हमें सिक्योर रखना है। ये ब्रीफली मैं गो थ्रू करूंगी कि हमें जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होती हैं रिगार्डिंग डाटा प्रोटेक्शन, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, उन्हें हमें फॉलो करना है। हमें इंफॉर्मेशन को फिजिकली खुद से देखना है कि सारी चीजें जिस तरह से प्रोटोकॉल में या हमारी पॉलिसीज में मेंशन है वो फॉलो की जा रही हैं। हमारी जो इंफॉर्मेशन सॉफ्ट में है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स में है। ट्रांसफर अगर इंफॉर्मेशन हो रही है तो वो सिक्योरली कम्युनिकेटेड की जा रही है। ये सारी चीजें हमें इंश्योर करने की जरूरत है। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये कि अगर आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप देखें कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो ब्रीच हो रही है, लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उस तरह से एथिकल स्टैंडर्ड्स को, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फौरी तौर पे अपनी मैनेजमेंट को रिपोर्ट करें कि ये चीजें जो हैं वो फॉलो नहीं की जा रही। तो ये सबकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखा जाए और अगर कहीं पे ब्रीचिंग हो रही है तो उसको फौरी तौर पर अपनी मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया जाए। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्विस यूजर्स। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्विस यूजर्स की बात इस सेंस में की गई है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं, कोई रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, तो कोशिश करें कि आप उसमें सर्विस यूजर्स को जरूर इन्वॉल्व करें ताकि उनका पर्सपेक्टिव भी लिया जा सके कि किस इंफॉर्मेशन को किस तरह क्लोज किया जा सकता है, किस को किस टाइम पे डिस्क्लोज करना जरूरी है, वो कैसे किया जाए, या जो भी मतलब उनके पर्सपेक्टिव हमारे पास आ सके सर्विस यूजर्स के, ताकि वो हमें गाइड कर सकें कि हम उनके बेस्ट इंटरेस्ट में अपनी रिसर्च को डिजाइन कर सकें। तो जरूरी नहीं है कि जितनी भी हमारी रिसर्च एक्टिविटीज हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है लिटरेचर रिव्यू की, उसमें भी हम सर्विस यूजर्स को जो है वो इंक्लूड करें, लेकिन जो जिनमें हमें वो गाइड कर सकते हैं, अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, उन चीजों में हमें जरूर सर्विस यूजर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की सर ने भी पहले बात की थी कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं जो कि हमें स्टैंडर्ड्स है हमारे पास टू कंडक्ट द ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, टू मॉनिटर, टू ऑडिट द ट्रायल, कैसे हमने रिकॉर्ड करना है, कैसे कंडक्ट करनी है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है हमने अपनी रिसर्च की, और किस तरह से हमने पार्टिसिपेंट के जो राइट हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के, प्राइवेसी के और इंटेग्रिटी की रिसर्च के साथ किस तरह से ये सारे मॉडल स्टैंडर्ड्स को हमने मीट करना है। तो ये गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक ट्रेनिंग कोर्स भी है जो कि 12 मॉड्यूल्स हैं, उसमें डिफरेंट उसमें मॉड्यूल्स हैं कि प्रोटोकॉल आप कैसे डिजाइन करेंगे, रिव्यू बोर्ड से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरह से वहां से अप्रूवल ली जा सकती है, कॉन्फिडेंशियलिटी पे हैं, प्राइवेसी पे हैं, पेशेंट की जो है हेल्थ और सेफ्टी को कैसे आपने इंश्योर करना है, डाटा को कैसे आपने प्रोटेक्ट करना है। तो डिफरेंट 12 मॉड्यूल्स हैं इसके और अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स का ये कोर्स है जो हो जाता है। पिल में जैसे पिल के जो टीम मेंबर्स हैं वो सब जानते हैं, उन्होंने ये कोर्स किया भी हुआ है, हम रेगुलर बेसिस पे इसको रीन्यू भी करते हैं। तो जो बाहर के पार्टिसिपेंट्स हैं, इफ दे वांट तो वी कैन शेयर द लिंक, अगर वो ये कोर्स करना चाहते हैं तो बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसमें सारी एक मॉरल प्रिंसिपल्स और एथिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से एक गुड क्वालिटी रिसर्च आप किस तरह से कर सकते हैं तो वो बताई गई है। अगर जैसे जीसीपी आप कर लेते हैं, हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो हम सबसे पहले हमें श्योर करते हैं कि हमारी जो रिसर्च स्टाफ है वो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस में ट्रेंड हो। तो जब आप उन्हें ट्रेन कर लेते हैं तो आप ये इस चीज की श्योरिटी है कि अब वो प्रोफेशनली जो है वो ट्रेंड हैं कि वो किस तरह से हाई क्वालिटी रिसर्च एथिकल मैनर में कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, अभी हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है कि अगर आप लोग, जैसे आप लोगों का रिसर्च में एक्सपीरियंस है या
किसी क्लिनिकल सेटिंग में अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो क्या क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो आपने ऑब्जर्व किए हैं, जो आप शेयर करना चाहें, और हम किस तरह से उनको इम्प्रूव कर सकते हैं? तो 2 से 3 मिनट लें, और इफ एनीवन वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। यस, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, दो कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन से लिंक नहीं है। कुछ दोस्त किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे और उनसे मुझे ये बात पता चली कि उनका एक स्टडी थी और उसका फिक्स इंक्लूजन क्राइटेरिया था। तो उन्होंने, जब उनको पता लगा कि हमें लाइक पार्टिसिपेंट्स नहीं मिल रहे, तो उन्होंने खुद से ही उस में चेंजेस करके, और जैसे सपोज हम कहते हैं कि डिप्रेशन हमें चाहिए और हमें स्कोर चाहिए बीडीआई पे, सपोज हम कहते हैं कि जिनका 28 स्कोर होगा तो वो इंक्लूडेड होगा, तो किसी का अगर 22 भी आए तो उन्होंने उनको भी इंक्लूड कर लिया खुद से ही अपने उस चीज़ को अचीव करने के लिए, टारगेट को। तो वो चीज़ मुझे था कि मतलब जब आपका क्राइटेरिया ही नहीं मीट हो रहा तो आप कैसे उसको कर सकते हैं, और वो मैंने उनको बताया भी कि ये गलत है। और वो किसी की सुपरविजन में कर रहे थे ये रिसर्च, या इंडिपेंडेंट कर रहे थे वो? मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही थी ये रिसर्च? बेसिकली दे वर स्टूडेंट्स, तो वो उनकी मतलब डिग्री रिक्वायरमेंट के लिए जो रिसर्च होती है उसी के ऊपर। सही। So उनके सुपरवाइजर्स को आई थिंक इट वाज देयर हमारी जैसे हाँ, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में अगर हम एग्जांपल लें ना, तो हमारी यूनिवर्सिटी में वो रेगुलर बेसिस पे हमारा चेक होता है कि आपने कितने का डाटा फिल करा लिया है, और वो हमें अपडेट करना होता है अपनी सुपरवाइजर। तो क्योंकि कुछ इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स जो है वो करते हैं, और वो सुपरवाइजर्स को पता भी चलती हैं, और इस तरह से फिर वो जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना, वो हमारी यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली वो पूरा डाटा सुपरवाइजर के पास जाता है, और 1 to 1 वो सारा डाटा चेक करती हैं। क्योंकि इस तरह की कोई भी अगर डाटा में कोई उन्होंने फेकिंग की होगी, तो वो बहुत जल्दी जो है वो सुपरवाइजर्स का एक्सपीरियंस होता है, तो वो पकड़ लेती हैं स्टूडेंट को कि ये आपने यहाँ पे गड़बड़ की हुई है। इस तरह के इंसिडेंसेस काफी रिपोर्ट हुए हैं। तो बेसिकली यस, इन सेकंड थिंग इज स्टूडेंट लाइक जहाँ पे कंसेंट फॉर्म की बात हम करते हैं, तो उन्होंने मतलब खुद से वो कंसेंट फॉर्म भी साइन किए डिफरेंट लोगों को वो पकड़ा के। तो मैंने कहा फिर करा क्यों रहे हो, जब आप लोगों ने खुद ही करने हैं तो फिर तो जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। सॉरी। अच्छा, कोई और शेयर करना चाहते हैं? हम आगे चलें। अच्छा अच्छा, जैसे हमने पीछे बात की थी स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस में पार्टिसिपेंट की हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड। तो जब भी हम कोई रिसर्च डिजाइन करते हैं, तो हम हमारे लिए अपने पार्टिसिपेंट की जो सेफ्टी है, हेल्थ और उनकी सेफ्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। और ना सिर्फ हमारे पार्टिसिपेंट की, बल्कि हमारा जो रिसर्च स्टाफ होता है, हमारा फील्ड वर्कर्स होते हैं, उनकी भी सेफ्टी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी कि हमारे पार्टिसिपेंट की सेफ्टी और हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है। तो अभी यहाँ पे हम 2 से 3 जो है वो पॉलिसीज जो हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे। जैसे एक है लोन वर्कर पॉलिसी, फिर हमारे पास है डिस्ट्रेस पॉलिसी और रिस्क असेसमेंट पॉलिसी। सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं लोन वर्कर पॉलिसी। नेक्स्ट। अच्छा जी, लोन वर्कर पॉलिसी है, ये बेसिकली है डिजाइन की गई है कि हमारा जो रिसर्च स्टाफ है, वो अगर उसमें से कोई डाटा कलेक्शन के लिए जा रहा है और फील्ड पे वो अकेला जा रहा है, तो उस सूरत में हम
किस तरह से उन्हें उनकी सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये अगर वो जैसे फील्ड आ रहे हैं, उनको कोई डिफिकल्ट से फेस करना पड़ती है, तो उस सूरत में उनकी जो सेफ्टी का जो रिस्क है उस तरह से मिनिमाइज हम कर सकते हैं, उसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। जैसे कि कुछ चीजें इसमें अभी बताई गई हैं कि अगर कोई फील्ड वर्कर है, वो डाटा कलेक्शन के लिए अकेले फील्ड में जा रहा है, तो उसको सबसे पहले तो कुछ चीजें इंश्योर करनी है कि उसके इमीडिएट सुपरवाइजर को पता हो कि वो फील्ड में जा रहा है, किस जगह पे जा रहा है, उसको कितना टाइम लगेगा असेसमेंट में, या अगर थेरेपी के लिए वो जा रहा है तो कितना टाइम रिक्वायर होगा। उसे कुछ चीज़ों को इंश्योर करना है कि उसका जो गाड़ी का फ्यूल है वो इतना एडिक्वेट हो कि वो इजीली चला जाए और वापस आ जाए। उसकी जो मोबाइल की बैटरी है वो उसे देखना है कि चार्ज हो, ताकि अगर उसे किसी से कांटेक्ट करना पड़ रहा है तो वो फौरी तौर पर कांटेक्ट कर सके। इसके साथ साथ उसके मोबाइल में बैलेंस भी होना चाहिए कि उसको कॉल करनी है तो उसे कॉल कर सके वो। फिर जब भी वो जा रहा होता है तो हम एक बड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो अपनी टीम में से कोई एक बड़ी नॉमिनेट करता है जो उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान उसके साथ कॉन्टेक्ट पर्सन के तौर पे रहता है। तो जब वो फील्ड पे अपनी जगह पे पहुंच जाता है वो उसको इन्फॉर्म करता है, जब वो अपनी असेसमेंट कंप्लीट करके वापस निकलता है तो वो इसको इन्फॉर्म करता है। तो उस सूरत में जो पर्सन जिसको उसने नॉमिनेट किया है वो इस चीज को एश्योर कर रहा होता है कि जो उसकी जो उसका पार्टनर है, जो फील्ड वर्कर है, वो सेफली पहुंच गया है, टाइम मेंटेन हो रहा है कि जिस वक्त उसने कहा था वो पहुंच जाएगा वो पहुंच गया है, जिस वक्त उसकी असेसमेंट खत्म होनी चाहिए थी वो कंप्लीट हो गई है, वो वापस आ रहा है। लेकिन अगर इसके दौरान कहीं आगे पीछे होता है टाइम या उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता तो वो जो बडी नॉमिनेट हुआ है वो फौरी तौर पे सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर सकता है। तो ये एक सपोर्ट उसको दी जाती है। इसके साथ फिर कुछ चीजें जो उन्हें अश्योर करनी होती हैं कि वो अपनी जो गाड़ी पार्क कर रहे हैं वो घर मतलब जिस जगह पे भी जा रहे हैं उसके क्लोज पार्क करें, क्योंकि अगर उन्हें किसी जल्दी में निकलना पड़ता है वो फौरी तौर पे उन्हें पार्किंग के लिए दूर ना जाना पड़े, वो फौरी तौर पर अपनी गाड़ी में बैठ के वापस आ सके। और कुछ चीजें जैसे जाने से पहले उन्हें ये चीज भी अश्योर करनी है कि वो जब पार्टिसिपेंट से मिलने के लिए जा रहा है तो वो एक दफा उन्हें रिकॉल कर लें, उनसे पूछ लें कि हमारा ये टाइम था, हमने इस टाइम पे हमने डिसाइड किया था कि हम मिलेंगे, क्या आप अवेलेबल हैं, ताकि वो एक दफा एश्योर कर लें और फिर उसके बाद जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम लॉन वर्कर पॉलिसी में बनाई गई है, ताकि जो रिसर्च स्टाफ है वो अगर फील्ड में काम कर रहा है या उसे कोई रिस्क है उसको, तो उसको रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके और उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रेस पॉलिसी। डिस्ट्रेस पॉलिसी में है कि पार्टिसिपेंट अगर ड्यूरिंग द असेसमेंट या आप कोई बेसलाइन असेसमेंट कर रहे हैं, आप थेरेपी कर रहे हैं, अगर कोई ऐसे साइंस शो कर रहा है, डिस्ट्रेस शो कर रहा है या वो कोई ऐसे बिहेवियरल साइंस दे रहा है जैसे वो शेक कर रहा है या वो रोने लग गया है, तो उस सूरत में ये इस चीज की इंडिकेशन है कि वो उस वक्त स्ट्रेस या इमोशनल डिस्ट्रेस जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो उस सूरत में आपको एज अ रिसर्चर क्या चीजें करने की जरूरत है, ये पॉलिसी उससे रिलेटेड है। तो जब भी कोई रिसर्चर ये देखता है कि उसके पार्टिसिपेंट इस वक्त डिस्ट्रेस में है, तो फौरी तौर पर सबसे पहले तो उसे पार्टिसिपेंट को कंफर्टेबल करना है और उसको अपनी असेसमेंट या थेरेपी जो भी कर रहा है वो उसे रोक देता है और उसे इमीडिएट सपोर्ट करता देता है ताकि पार्टिसिपेंट को कंफर्टेबल कर सके। वंस पार्टिसिपेंट कंफर्टेबल होता है, आप पार्टिसिपेंट से पूछते हो कि क्या वो फील कर रहे हैं कि वो कंटिन्यू कर लेंगे अपनी असेसमेंट को या थेरेपी को, या वो चाहते हैं कि हम इसे रीस्केड्यूल कर लें और नेक्स्ट मीटिंग में इसको कंटिन्यू करें। तो जो भी पार्टिसिपेंट की प्रेफरेंस होती है उसके अकॉर्डिंग जो है हम या तो हम एक ब्रेक के बाद अपनी असेसमेंट कंटिन्यू करते हैं या फिर हम नेक्स्ट स्केड्यूल कर लेते हैं ताकि उनके लिए आसानी हो। फिर अगर फिर है कि रिसर्चर ने जब देखा, उन्हें कंफर्टेबल कर लिया, पार्टिसिपेंट तो अपने घर चला गया, लेकिन रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सुपरवाइजर को इमीडिएटली इस सिचुएशन के बारे में
इन्फॉर्म करेगा और वो फिर उससे एडवाइस लेगा कि नेक्स्ट उसे क्या करना है। पार्टिसिपेंट घर चला गया, रिसर्चर ने अपने सुपरवाइजर को भी इन्फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट डे और 1-2 दिन के बाद आप जो है एज ए रिसर्चर अपने पार्टिसिपेंट को कॉल करते हैं, ठीक है। आप उनसे पूछते हैं कि अब वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी डिस्ट्रेस कंफर्टेबल हुए, वो डिस्ट्रेस अभी फील तो नहीं कर रहे। तो ये चीज एक कर्टेसी कॉल उन्हें जाती है ताकि इंश्योर किया जा सके आपका पार्टिसिपेंट सेफ है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टिसिपेंट अभी भी डिस्ट्रेस फील कर रहा है तो आप फिर अपने सुपरवाइजर को भी इन्फॉर्म करते हैं और उसके लिए कोई अरेंजमेंट करते हो किसी साइकेट्रिस्ट की या मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसकी एक अपॉइंटमेंट अरेंज करवाते हैं ताकि उसके इस डिस्ट्रेस जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसको रिजोल्व किया जा सके। तो ये एक पॉलिसी है, जिस गाइडलाइंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करते हैं ताकि पार्टिसिपेंट की सेफ्टी को उनकी डिस्ट्रेस जो है वो उसको कम से कम कर सके और उनकी सेफ्टी को इंश्योर कर सके। मुकद्दस, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूँ। जी जी ठीक है, बिल्कुल मुकद्दस आपने सही कहा डिस्ट्रेस का। इसमें सिर्फ एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगी कि डिस्ट्रेस पॉलिसी जो है वो, जैसे मुकद्दस ने कहा कि हम पार्टिसिपेंट्स के लिए बनाते हैं, ये डिस्ट्रेस पॉलिसी जो है वो स्टाफ के लिए भी होती है, रिसर्चर्स के लिए भी होती है। और उसमें भी सेम, अगर जैसे हम पार्टिसिपेंट्स के लिए हम देख रहे हैं कि हम उनके लिए सेशन अरेंज करवा रहे हैं, हम सुपरवाइजर से डिस्कस करवा रहे हैं, हमको गैप दे रहे हैं, हम उनका लोड, वो सारी चीजें हम मैनेज कर रहे हैं। सेम अगर चीजें अगर हमारी टीम एक्सपीरियंस कर रही होती है तो सेम प्रोटोकॉल जो है वो टीम के साथ जो है फॉलो किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सैरिश टू ऐड। क्योंकि जिस तरह पार्टिसिपेंट की हमारे पास हमने आगे बात की कि पार्टिसिपेंट की सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारे लिए रिसर्चर की भी सेफ्टी जो है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट। देन हमारे पास रिस्क असेसमेंट पॉलिसी है। ये रिस्क असेसमेंट सुसाइड से रिलेटेड है कि अगर आपके जो पार्टिसिपेंट हैं उन्हें सुसाइड का रिस्क है, वो हम चेक करते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट का सुसाइड का रिस्क कितना है, लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है या हाई रिस्क है या इमीडिएट रिस्क है। तो उसके लिए जैसे बहुत से सुसाइड रिस्क असेसमेंट स्केल्स हैं जिन्हें यूज करके आप उनकी असेसमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसा कि अगर लो रिस्क है आपका और पार्टिसिपेंट को कोई सुसाइडल इंटेंट नहीं है उसकी, तो आपको 3 चीजें जो है वो इंश्योर करनी है। एक तो आपने पार्टिसिपेंट की फीलिंग्स को वैलिडेट करना है कि मतलब उसने जो भी रिपोर्टिंग की है कि वो ठीक है, मतलब उसको कोई सुसाइडल इंटेंट नहीं है, उसकी कोई सुसाइडल आइडिएशन नहीं है। इस चीज को आपने दोबारा से वैलिडेट करना है। फिर आपने पार्टिसिपेंट को एनकरेज करना है कि वो अगर उन्हें फ्यूचर में वो डिस्ट्रेस फील करते हैं या उन्हें किसी भी मदद की जरूरत होती है तो अपने क्लिनिशियन से जरूर कांटेक्ट करें, और हो सके तो उन्हें कोई रेफरल के लिए कोई किसी क्लिनिशियन का नंबर या कोई रेफरल उन्हें कांटेक्ट डिटेल्स जरूर प्रोवाइड करें, बेशक उनका लो रिस्क है। फिर अगर आप असेस करते हैं कि पार्टिसिपेंट जो है वो आपका मॉडरेट रिस्क पे है, तो आपने अभी जो हमने पीछे चीजें डिस्कस की कि आपने वैलिडेट करना है उसकी फीलिंग्स को, एनकरेज करना है क्लिनिशियन को कांटेक्ट को, और रेफरल आपने उनको प्रोवाइड करना है। उसके साथ साथ आपने करना है ये कि आपने पार्टिसिपेंट से उसका खुद का सेफ्टी प्लान बनवाना, कि जब उसको इस तरह की थॉट्स आ रही हैं या उसकी जो है अर्चेस इंक्रीज हो रही हैं, उसको बहुत ज्यादा उसका दिल चाह रहा है कि वो अटेम्प्ट करे, तो उस सूरत में उसका सेफ्टी प्लान क्या होगा ये आपने पार्टिसिपेंट से बनवाना है। और उससे पार्टिसिपेंट को इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर्स भी देने हैं कि जब उसको बहुत ज्यादा थॉट्स आ रही हैं तो उस सूरत में वो किस से इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकता है इमरजेंसी में। फिर आपके पास अगर पार्टिसिपेंट है वो हायर के साथ है, उसकी सुसाइडल इंटेंट जो है वो प्रेजेंट है लेकिन उसका कोई प्लान नहीं है या उसके पास कोई भी लेथल मींस नहीं है टू अटेम्प्ट द सुसाइड, फिर आप उस सूरत में अभी जो पिछले जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सारी चीजें आप इंश्योर करते हो, और उसके साथ साथ आप इनकरेज करते हो पार्टिसिपेंट को कि वो इमीडिएटली अपने क्लिनिशियन या अपने साइकेट्रिस्ट को इमरजेंसी सर्विसेज में उनको इन्फॉर्म करें, उनसे कांटेक्ट करें। और आप क्योंकि आपके पास वो एज अ रिसर्च पार्टिसिपेंट भी आ रहा है, तो आप अपने सुपरवाइजर को भी इन्फॉर्म करते हो कि ये पार्टिसिपेंट है और इसको
करंटली जो है वो आइडिएशन या एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन है वो उनको हो रही हैं। तो ये चीज आपने इंश्योर करनी है कि वो अपने क्लिनिशियन से कांटेक्ट करें और आप अपने सुपरवाइजर को जरूर इन्फॉर्म करें। फिर आपके पास है इमीडिएट रिस्क के क्लाइंट जो है वो किसी भी वक्त जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है, और उस सूरत में आपने पीछे जितनी भी चीजें हैं वो सारी इंश्योर करनी है। अपने सुपरवाइजर को आपने कॉल करनी है, उन्हें बताना है। और इसके साथ मेरी आवाज इको हो रही है, प्लीज माइक म्यूट कर लें अगर किसी का ऑन है। अच्छा, आपने अपने सुपरवाइजर को कॉल करनी है और आपने जैसे पीछे कॉन्टेक्ट नंबर उनके पास इमरजेंसी होने चाहिए। आपने उनको इनकरेज किया है कि क्लिनिशियन से कांटेक्ट करें। इसके साथ जब इमीडिएट रिस्क है उस सूरत में आप कभी भी पार्टिसिपेंट को अकेले वापस नहीं जाने देंगे। वो जब जाएंगे तो वो अपने किसी फैमिली के मेंबर या क्लोज जो उनका सपोर्ट नेटवर्क है उसमें से कोई भी पर्सन हो सकता है, उसके साथ जो है वो आप उन्हें वापस भेजेंगे और आप इंश्योर करेंगे कि वो इन्हें क्लिनिशियन के पास या हॉस्पिटल में लेके जाएंगे ताकि इनके इमीडिएट रिस्क जो है वो सुसाइड का उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क पे हम इंश्योर करते हैं कि हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायल स्टीयरिंग कमेटी। अच्छा, ट्रायल स्टीयरिंग कमेटी जैसे हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन गवर्नेंस की, तो ट्रायल स्टीयरिंग कमेटी एक इंडिपेंडेंट कमेटी होती है जो सुपरवाइज करती है आपकी ओवरऑल क्लिनिकल कंडक्ट ऑफ द ट्रायल को। वो एडवाइस भी करती है, आपको सपोर्ट भी करती है और ओवरसी भी करती है कि ट्रायल जो है वो हमारे प्रोटोकॉल जो हमने डेवलप किया था, जो प्रोटोकॉल में कहा गया है वो हम वो मॉनिटर करती है कि उन सारी चीजों को हम इंश्योर कर रहे हैं एज इट इज प्रोटोकॉल में जो लिखा गया है उसी तरह से रिसर्च की जा रही है। इसी तरह ट्रायल स्टीयरिंग कमेटी का काम ये भी होता है कि वो प्रोटोकॉल को इंडिपेंडेंटली रिव्यू करती है बिफोर कि हम उसको एथिकल अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, और वो मॉनिटर करती है हमारी डिफरेंट टाइमलाइंस होती हैं। जैसे हमारी रिक्रूटमेंट की टाइमलाइन होती है, हमारी थेरेपी डिलीवरी कितनी देर में हो जानी चाहिए, हमारा रिटेंशन रेट क्या है, ये सारी चीजें जो है इन सब चीजों को भी वो मॉनिटर करती हैं कि वो प्रोग्रेस को इंश्योर कर सकें। उसके साथ साथ वो देखते हैं कि हमारे इन्फॉर्म कंसेंट प्रॉपरली लिए जा रहे हैं, पार्टिसिपेंट प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड हैं रिस्क बेनिफिट से, वो अपनी उनकी जो कंसेंट है वो वॉलंटरीली ली जा रही है, और पार्टिसिपेंट को वो ये चीज भी इंश्योर करते हैं कि पार्टिसिपेंट जो है वो सेफ है, सेफली जो है ट्रायल कंडक्ट की जा रही है। एडवर्स इवेंट्स भी जो है ये देखते हैं। तो ओवरऑल ये इंडिपेंडेंट कमेटी होती है जो कि ओवरसी कर रही होती है ट्रायल को। अब इस ट्रायल में मेंबरशिप जो होती है वो एक इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन होता है जो कि स्टडी में इन्वॉल्व नहीं होता, वो सिर्फ इस कमेटी का मेंबर होता है। इसके अलावा 2 या 2 से ज्यादा इसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर्स हो सकते हैं जो कि जिनकी एक्सपर्टीज हो क्लिनिकल रिलेटेड और मेथडोलॉजिकल रिलेटेड, ताकि वो भी एडवाइस कर सकें कि ट्रायल को किस तरह लेकर चलना है और क्या मेथडोलॉजीज जो है वो बेस्ट रहेंगी। फिर इसमें चीफ इन्वेस्टिगेटर होता है और एक पॉसिबल अगर हो तो इसमें ले पर्सन या जो हमारे सर्विस यूजर्स होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है ताकि, और ये कमेटी जो है वो मतलब डिफरेंट टाइम पॉइंट्स में मिलती है, यूजुअली साल में 1 दफा या साल में 2 दफा मिलती है, अनलेस के कोई बर्निंग इशू नहीं है जिसको फौरी एड्रेस करने की जरूरत है। तो अगर कोई ऐसा इशू हो तो फिर कमेटी को कॉल कर ली जाती है, वरना वो रेगुलर अपनी जो उनकी मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग्स पे मिलते हैं और चीजों को सारी देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। अच्छा, पीछे रह गई स्लाइड। अच्छा, जब हम ट्रायल स्टीयरिंग कमेटी बना रहे हैं तो जैसे हमने बात की कि हम इंडिपेंडेंट पर्सन लेते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन लेते हैं और एक्सपीरियंस पर्सन भी हमने लेना है। हमने ये नहीं देखना कि सिर्फ वो इंडिपेंडेंट हो, उसका क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी रहा हो ताकि वो एडवाइस कर सके, सपोर्ट कर सके टीम को
किस तरह से उन्होंने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए अपनी ट्रायल कंडक्ट करनी है। फिर हमें इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि जो हमारी ट्रायल स्टीयरिंग कमेटी है उनको हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्म करें, हमारी फंडिंग बॉडीज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें हम वो बिफोर हैंड इंफॉर्म करें, क्योंकि एक्सपीरियंस तो वो हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारी जो ग्रांट बॉडी है, फंडिंग बॉडी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हों। तो हमें ये सारी चीजें इंश्योर करनी होती हैं कि वो ट्रायल कमेटी को पता हो कि हमें प्रोजेक्ट किस तरह से लेकर चलना है, और आपके क्लियर रूल्स और गोल्स होने चाहिए ट्रायल स्टीयरिंग कमेटी के। और मीटिंग्स के बारे में कि मीटिंग्स नेसेसरी हो, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स करनी चाहिए, वरना जो आपकी रेगुलर सेट हुई है मीटिंग्स आप उनको फॉलो करें। बहुत ज़्यादा टू मैनी मीटिंग्स करेंगे तो उससे भी चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे हो जाएंगी, आप फेडअप हो जाओगे, उस तरह से एडवाइस नहीं कर पा रहे। तो आपकी एक जो रेगुलर टाइमलाइन आपकी सेट हुई है आप उस पर मीटिंग्स करें। अगर कोई जैसे मैंने पहले बात की कि कोई बर्निंग इशू नहीं है जिसे आपने एड्रेस करना है। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डाटा एंड एथिक्स मॉनिटरिंग कमेटी। डाटा डीएमसी जो है वो भी एक इंडिपेंडेंट कमेटी होती है, और इसमें जो मेंबरशिप होती है ये यूजुअली 6 to 7 इसमें मेंबर्स होते हैं, जिसमें हमारे बायोस्टैट्स के लोग होते हैं, स्टैटिस्टिशियन होते हैं, जो भी आप डिसऑर्डर या आप डिजीज जिस पे भी या जिस एरिया पे आप रिसर्च कर रहे हो उससे रेलिवेंट लोग होते हैं, ताकि आपके डाटा को वो प्रॉपरली उनकी इन्फ्रेंसेस अपने डाटा से निकाल सकें। और इस डाटा का काम होता है कि वो इंश्योर कर सकें कि आपका डाटा प्रॉपरली हैंडल किया जा रहा है, एथिकली वो सेफ है, और जिस तरह से स्टोर किया जा रहा है, जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है वो एथिकली साउंड है। और ये इंश्योर करते हैं इंटेग्रिटी ऑफ द ट्रायल को डाटा। और ये जो है वो डाटा को कॉन्टिन्यूली मॉनिटर कर रहे होते हैं, और ये जो है ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन या मीटिंग्स भी कर सकते हैं, और ये अपना कॉन्टिन्यूस फीडबैक देते हैं ऑफ द डाटा कि आप किस तरह से डाटा ले रहे हो, किस तरह से स्टोर कर रहे हो। ये प्रॉपर फीडबैक जो है वो ये रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये एडवर्स इवेंट्स को भी जो है वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं, और अगर कोई ऐसा एडवर्स इवेंट होता है कि इनको लगता है कि ट्रायल कंटिन्यू नहीं रह सकती अब मजीद, तो वो ये अपना फीडबैक फिर ट्रायल स्टीयरिंग कमेटी को भेजते हैं, और ट्रायल स्टीयरिंग कमेटी पे डिसाइड करती है कि ट्रायल हमारी कंटिन्यू होगी या कंटिन्यू नहीं होगी। इस तरह जैसे अभी एडवर्स इवेंट की बात की, तो एडवर्स इवेंट के दौरान अगर हमें लगता है कि किसी के डाटा को हमें अनब्लाइंड करने की जरूरत है, ताकि हम देख सकें कि एडवर्स इवेंट हमारी रिसर्च पार्टिसिपेशन या हमारी इंटरवेंशन की वजह से हुआ है या इसके कोई और रीजंस हैं, तो ये कमेटी जो है वो डाटा को अनब्लाइंड भी कर सकती है, तो इसके पास अथॉरिटी होगी। जैसे आगे बताया कि इनका काम है टू मॉनिटर द डाटा एंड मेक रिकमेंडेशंस टू स्टीयरिंग कमेटी on whether there are any ethical or safety reasons or why the trial should not continue. और जैसे आगे बात की कि ट्रायल स्टीयरिंग कमेटी डिसाइड करती है कि वो कंटिन्यू होगा या नहीं होगा ट्रायल हमारा। अब हमारे पास है सीरियस एडवर्स इवेंट्स। सीरियस एडवर्स इवेंट्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली हमारी रिसर्च के दौरान हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि क्या हमारे पार्टिसिपेंट किसी रिस्क पे तो नहीं है, और ये इसलिए भी जरूरी होता है कि ताकि हम एक स्टैंडर्डाइज तरीके से मॉनिटरिंग करके हम जैसे अपनी फंडिंग बॉडी है उनको भी कर सकें कि बता सकें कि कितने एडवर्स इवेंट हुए या कितने नहीं हुए और किस रीजंस की वजह से हुए। तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये जरूरी होता है। एडवर्स इवेंट्स की अगर हम बात करें तो एडवर्स इवेंट ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन, अगर पार्टिसिपेंट के साथ कोई भी ऐसा मेडिकल अक्रेंस हो जाती है, अनवांटेड या अनटूवर्ड उनके साथ मेडिकल अक्रेंस होती है, जैसा कि किसी पार्टिसिपेंट की डेथ हो जाती है या किसी पार्टिसिपेंट के लिए वो पार्टिसिपेशन लाइफ थ्रेटनिंग साबित हुई है, या वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं, या फिर उनके हॉस्पिटलाइज्ड वो थे लेकिन उनकी हॉस्पिटलाइजेशन का जो ड्यूरेशन था वो बढ़ गया है,
या उनको सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी फेस करना पड़ी है या कोई इम्पेयरमेंट के बहुत ज्यादा रिस्क है और उसके लिए उनको इंटरवेंशन की जरूरत है, तो ये सारी चीजें हमारी एडवर्स इवेंट काउंट होंगी। बेशक वो हमारी जो रिसर्च पार्टिसिपेशन की वजह से हैं या रिसर्च पार्टिसिपेशन की वजह से नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हमारी रिसर्च का पार्ट है उस टाइम पीरियड के दौरान, तो ये हमारे जो है रिसर्च एडवर्स इवेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट होंगे। और ये विद इन 24 आवर्स जो है वो आपके पीआई को रिपोर्ट होते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। और जो डाटा मॉनिटरिंग कमेटी है, जैसे मैंने आगे बात की, डाटा मॉनिटरिंग कमेटी इसको फिर रिव्यू करती है, वो देखती है अगर अनब्लाइंड करना है डाटा तो वो अनब्लाइंड करते हैं, ट्रायल स्टीयरिंग कमेटी को रिपोर्ट करते हैं और ट्रायल स्टीयरिंग कमेटी फिर डिसाइड करती है कि आपका जो है ट्रायल कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। तो ये भी पार्टिसिपेंट की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होता है।